चलो इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह. टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्स. बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, मुझे आप लोगों से पूछना है, इज देयर एनीथिंग दैट स्टेड विथ यू इन योर माइंड? मतलब आई नो बहुत सारी बातें हो गई थी फॉर द फर्स्ट सेशन, बट कोई एक बात जो आपके माइंड में रही, या कोई ऐसी चीज था दैट यू थॉट ओवर इट ड्यूरिंग द वीक? आई नो बड़ा बिजी वीक था ये, बट स्टिल इफ एनीथिंग स्टेड विथ यू. एनी थॉट्स फ्रॉम एनीवन? Yes, I would like to share that we told जी, us तो that बस. our mind is the only organ which keeps on like developing, never ends. Absolutely, absolutely, absolutely. The beautiful thing, I tell you, कभी वाकई मौका मिले तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे. I I just love it. I mean, the more we study, the more we understand, the more we connect at a human level, the more you realize the marvel of what Allah has created. The whole human being, of course, but the control center, right? Anybody else? किसी के जहन में कोई ऐसी बात थी जो रही, जो आपको लगा कि हाँ, wow, this stayed with you or this clicked? Any thoughts from anyone? No test, no exam, just something that हाँ, आपके माइंड में ये बात रही, या ये आपने सोचा इसके बारे में. Sure, we will pick it up from here, and then hopefully, inshallah, we will start our second session a bit more in detail. But very quickly, I want to review what we did last week. मैंने आपको समझाया था कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है, for me, it's divided into two definite halves. The first half is more about understanding your child, connecting with your child, understanding basic child psychology, which means normal child development. In the first class, whatever we were talking about आपके बच्चे यार, नॉर्मल बच्चे जो घर में हैं, आप कैसे उनको समझो. And we talked about why it's important to understand children of our generation, because there is a difference between the way their world is and the way our world is. So to understand and to upgrade ourselves is extremely important. जो हमने बात बोली थी. Okay, let me just put it on this so the waiting room is open. All right. So हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि to understand child psychology, the first 5 years of life, the basic first 5 years are the most important years. इसका ये मतलब नहीं है कि बाद के years important नहीं है. उसका ये मतलब है कि everything की एक होता है ना, हम कहते हैं golden period क्या है. तो the golden period is actually the first 2 years, but if you expand it, it's the first 5 years. बट जितना बेस पे आपको काम करना है, जितना जो हम तरबियत की बात करते हैं, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लर्निंग की बात करते हैं, हम आईक्यू की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, गुड स्पीच की बात करते हैं, राइट, मैनर्स की बात करते हैं, वो सब का जो ग्राउंडिंग है ना, वो अर्ली 5 years में. That is why I asked you, if you have children under the age of 5, then you are extremely lucky. You can kind of learn and then start applying, inshallah. But we will also talk about what if my child has become 15 now, right? And for whatever reason, I could not do all these techniques at that time. So what do I do now? तो जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे, और वो आपको second half of the course में, यानी when we talk about module number 4, 5, 6, which is more in terms of strategies, वो वहां पे आपको उसका answer, inshallah, you will get them. I know some of you messaged me over the weekend. You shared some personal questions and concerns, which was very, very healthy for me. मैंने आपको पहले भी कहा है कि don't keep everything in your mind. It's better to discuss it. I'm not saying that I will give you all the answers, but I'm saying that together, inshallah, we will be able to find something that is beneficial for your child, inshallah. ठीक है? So, child psychology को समझने के लिए हमने क्या कहा था कि the base of it is piles. And piles को explain करने के लिए, we said that you can think of as a teacher piles of books, you can think of medical term pile, or you can just say piles in terms of child development, जो कि different areas of development को देखता है, जिसमें हम जो है वो
फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल. And I told you that this is extremely important. Even if you start talking to me about, I don't know, your 13-year-old boy who is being challenging in terms of his behavior, right? आप मुझसे 13 साल के बच्चे की बात करोगे कि ये तंग कर रहा है या पढ़ नहीं रहा या जिद कर रहा है, whatever it is, but I will still bring you back and I will ask you about his childhood. And why am I asking you? Because a lot of the early 5 years of development will give us answers on, हमेशा नहीं लेकिन बहुत सारी बार हम मैच कर रहे होते हैं पजल को और पजल के पीसेस को फिक्स कर रहे होते हैं टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द चाइल्ड्स प्रॉब्लम. सो फर्स्ट 5 years में आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अर्ली डेवलपमेंट है, और उसके अंदर आप सिखाते थे बिल्कुल फर्स्ट ईयर यानी 0 से लेकर 12 months में आपका जो सबसे बड़ा कारनामा है या काम है, जो अचीवमेंट है, वो आपको ये करना है कि आपको अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट? उसकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी और उसकी अटैचमेंट बिल्डिंग करनी है. नाउ देयर इज अ होल एरिया ऑफ साइकोलॉजी दैट इज जस्ट ऑन अर्ली अटैचमेंट. कितना इम्पोर्टेंट है आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग हो, और वो बाद के मसले भी जो है ना उससे सॉल्व होते हैं, बाद के रिलेशनशिप के इश्यूज भी, यहाँ तक कि आप जब पेरेंट बन जाते हो आपकी पेरेंटिंग भी इस पे बेस्ड हो रही होती. तो अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में, अर्ली 0 से 12 months में बॉन्डिंग, अटैचमेंट, सिक्योरिटी, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. कैसे बिल्ड होगा? बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कैसे बिल्ड होगा? जिस मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट एवरी टाइम द बेबी क्राइज, you go to the baby, you soothe the baby, you calm the baby because baby knows that हाँ मेरे पास कोई है, और उस तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है. दूसरा हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई बहुत ज्यादा गोरे खुश होते हैं बता बता के कि आप मसाज करें बेबीज को, और हम कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी किसी और को बुलाते हैं कराने के लिए. बट व्हाई इज मसाज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक तो फिजिकल टच भी होता है, बॉन्डिंग भी होती है, ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन भी स्ट्रांग हो जाता है, बट द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द बेबी, whether it is a physical bond or whether it's an emotional bond, gets very strong because of that. So very important. The third thing which is very important, आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि प्लीज जो आपकी बेबी की हियरिंग है वो 4 months में स्टार्ट हो जाती है, यानी 16 weeks में 100% बेबी की हियरिंग डेवलप हो गई है, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज फाइन. तो हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि भाई, इसीलिए आपसे कहा है कि मेक श्योर दैट यू डिसाइड गुड थिंग्स, यू टॉक टू द बेबी, यू कम्युनिकेट टू द बेबी. नाउ आई नो इट साउंड्स अ बिट सिली बट यू कैन, राइट? यू कैन स्टार्ट, और वही आपका अर्ली बॉन्डिंग है. तो बाद में भी हम आपसे कहते हैं कि जब बेबी बॉर्न हो गया है, जब आपके साथ है, इवन 1 year का बेबी है, अभी कम्युनिकेट नहीं करा, बोल नहीं रहा, बट वी आर स्टिल टेलिंग यू टू स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, कम्युनिकेट विद द चाइल्ड. तो some of you are very talkative, तो बड़ा आसान होता है बच्चों के साथ बात करना. बट सम पीपल से मैं तो खुद बात नहीं करती इतना, मैं कैसे बेबी से बात करूं, अजीब सा लग रहा है मुझे. तो हम उनसे ये कहेंगे कि फिर आप वो करो जैसे रनिंग कमेंट्री करते हैं, यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अच्छा, मैं फ्रिज के पास जा रही हूँ, मैं ये देखो आपके लिए बॉटल निकाल रही हूँ, अब मैं ये डाल रही हूँ, जस्ट एवरी स्टेप. बट यहाँ पे हमने जो एम्फेसिस किया था वो उस चीज पे कहा था कि प्लीज एवॉइड बेबी टॉक, बेबी लैंग्वेज. आप बेबी लैंग्वेज करोगे, वो ही वर्ड्स उसके माइंड में जा रहे हैं. हमने आपसे कहा आपके बेबी का जो ब्रेन का एरिया है, जो वोकैबुलरी वर्ड्स को स्टोर करता है, वो बिल्कुल रेडी है, right? If you're teaching them baby language, if you're teaching them, kind of just lame talk, तो वो वही लर्न करेंगे. और उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट, इफ यू हैव, आई डोंट नो, 4 people at home who want to speak 4 different languages, फॉर इंस्टेंस कोई कच्ची में बात करे, कोई गुजराती में, कोई फ्रेंच में, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, कोई अरबिक में, तो द बेबी हैज अ ब्यूटिफुल एबिलिटी कि वो खुद ब खुद वो लैंग्वेजेस को बहुत अर्ली एज में पिक कर लेता है. तो द अर्ली 2 years ऑफ लाइफ, first 2 years of life are the most important for early language development, क्योंकि उसमें आपको बच्चे को ग्रामर नहीं सिखानी, कुछ भी नहीं सिखानी, वो एनवायरनमेंट से ही पिक कर रहा होता है और बहुत जल्दी लर्न कर लेता है. तो दैट इज ऑल अबाउट अर्ली डेवलपमेंट, राइट? अच्छा, हमने अब तक बात की है आपके नॉर्मल बच्चों की, हमने अब तक बात की है happy healthy children at home who are developing
ब्यूटिफुली, राइट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो अर्ली इयर्स में ही प्लीज, वी टॉक्ड अबाउट रेड फ्लैग्स, वी टॉक्ड अ बिट अबाउट डेवलपमेंटल डिलेज, कि अगर कोई ऐसी चीज है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उसको चेक करवा लो, उसको डिस्कस करवा लो। I remember I told you that they can, we respect elders in our family, and I can understand that sometimes they tell them कि नहीं ऐसा होता है हमारे खानदान में, इसके इस तरह भी थे, ये भी थे, but still again वही मौला अली की हदीस कि उस जमाने में कोई और चीजें थी, इवन मेडिकल स्पेशलाइजेशन इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो इफ देयर आर कंसर्न्स, लिसन टू योर maternal instinct, it is a gift from God, and if you feel that there is something not right, then please get it checked as early as possible. इसके बाद हमने बहुत जल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट किया था, और वहां मैंने आपसे कहा था कि देखिए जहां पर मल्टीपल कंप्लेन्स हैं दैट चिल्ड्रन दीज डेज आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज और नॉट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड नॉट काइंड वर्ड्स, और वहां पर मतलब दिस इज ए जनरल फिनोमिनन, इट्स नॉट जस्ट आप ये कहोगे नहीं हमारे घर में ऐसे नहीं होता, बट स्टिल children are picking. And I love to do this little exercise where I'm like asking you, okay, how many bad words do you know? Right? There is nobody who can claim that I don't know bad words. So the trick here is that I don't think we can make our children forget. They will pick from the environment. The trick here is two things. Number one, can we start giving them better words? For instance, teaching them, यहाँ पे हमारे कोर्स में आगे चल के इमोशनल वोकेबलरी के ऊपर थोड़ी सी बातें आएंगी, that how important it is to talk to your children about emotional and emotions, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, if you're angry, you're upset, you're afraid, you're worried, आप एक्सप्रेस करो ना। जब आप नहीं करते हो तो आप अपने अपने अंदर अंदर रखते हो, फिर एक दिन यू ब्लो अपार्ट, राइट? सो कैन वी स्टार्ट टीचिंग देम दैट, कैन वी स्टार्ट टीचिंग देम एंड अलाउइंग देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेल्दी वेज? एक ये चीज सिखानी, यानी गिव देम बेटर वर्ड्स। द अदर थिंग दैट वी वांट टू डू इज, हाँ, अगर गॉड फॉरबिड आपके बच्चे ने किसी भी वजह से उसकी आदत हो गई है या उसने एक एनवायरनमेंट से को पिक कर लिया है दैट ही और शी इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और वोकैबुलरी, देन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, राइट? तो एक जगह आपकी थोड़ी सी पेरेंटिंग आएगी, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में जब हम टेक्निक्स करेंगे उसमें आएगा। तो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक तरफ मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्ट वर्किंग ऑन गिविंग इमोशनल एक्सप्रेशन एंड स्टार्ट गिविंग देम मोर वोकैबुलरी सो दैट उनका हमेशा से वर्ड बैंक बेहतर हो, एक्सप्रेशन बेहतर हो। एंड देन द अदर साइड वी टॉक्ड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड मैनेज द बिहेवियर। हम नहीं कह रहे कि अच्छा बुरे वर्ड बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा अच्छे काम करना भी इनको सिखाएं। हमने बात यहाँ पे एंड की थी in the first session where we said that in the whole child psychology, one of my favorite age is around 2.5 to 4 years. And the reason I enjoy these working with these children is because that is the age. Now, in the book, अगर आप child psychology की किताबें पढ़ोगे तो वो age start होती है 2.5 से 4 तक. But in today's world, in 2025, I can tell you that children are getting much smarter and they're growing much, the progress is much sooner. So a lot of the children as young as maybe 18 months, maybe हम ये change इनके अंदर देख रहे हैं। Change क्या है? Change वो पहला line है जो इधर लिखा हुआ है, that जो the children under the age of 1, यानी 1 साल या 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अभी उनकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई होती है, right? They don't have a sense of identity. For instance, you have a child and the child's name is Ali. Okay, let's stick to Ali. Ali, and we are telling Ali, अगर आपने उसको सिखाया है, ठीक है, अगर आपने उसको सिखाया Ali, where are your eyes, where are your nose, where is your hand, you've taught him. So that child under the age of 1, right? अभी हो सकता है उसकी इतनी स्पीच भी नहीं आई, लेकिन अगर समझ सब रहा है तो that child is able to tell you that this is my hand, this is my eye, this is mama's eye, this is mama's nose. वो बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करके आपको पॉइंट करके या वर्बल करके बता देगा कि दिस इज द पार्ट। बट द सेंस ऑफ दिस इज मी एज अ होल, या ये मैं हूं, राइट? वो मैं जो है, देखिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था दैट एनीथिंग अल्लाह ताला हैज पुट
he has put with his wisdom basically, right? हमको नहीं पता, लेकिन एक वजह होगी। जब आप देखते हो कि स्मॉल बेबीज क्रॉल करके जा रहे हैं, तो हर चीज मुंह में डालते हैं ना, आपको कहते हैं यार क्यों मुंह में डाल रहे हैं, चप्पल भी मुंह में डाल रहे हैं, and you get so irritated and you get so frustrated that everything has to go in back. But now science has proved, right, that the more the kind of exposure to germs or bacteria or whatever dirt, that builds the child's immune system, because the child, वो जैसे हमें वैक्सीन लगते हैं, right? Vaccine is a bit of the medicine that bit of the disease that goes inside us to build antibodies. The same philosophy is there, and the same thing happens here कि अल्लाह ने जो चीज डाली है वो अपने wisdom से डाली है. तो although in terms of managing the children, in terms of kind of parenting the children, this can be a little challenging. आपका आपकी जो हम कहते हैं ना आपकी हद को टेस्ट करने का, जो साइकोलॉजी में टर्म हम यूज करते हैं, बाउंड्री टेस्टिंग, यानी इट्स द लिमिट दैट द चिल्ड्रन कैन ब्रिंग यू टू, because they are testing. Why are they testing you? Because they are developing a sense of identity. They're developing a sense of myself. मैं, मुझे ये पसंद है. और मैंने आपसे कहा कि ये आइडेंटिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था that if people do not have a sense of identity or a sense of me, मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूँ, मेरी चीज, राइट? अब जहां पे भी मैं आएगा, जहां पे भी मी आएगा, जहां पे भी मेरा आएगा, वहां पर जिद शुरू हो जाएगी, राइट? बिकॉज एक आपका ओपिनियन है, एक किसी और का ओपिनियन है. तो दिस सेंस ऑफ identity or this sense of self will sometimes lead to a conflict. और ये क्लासिक है जो आप 2.5 से लेके 4 में देख रहे होते हो. पिछली क्लास में मैंने कहा, आज भी मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट इफ आई मीट एनी मम्स who have children between the ages of 18 months, today's world, 18 months to 4 years, 5 years sometimes, and if your primary complaint is बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है, हर बात पे जिद कर रही है, और मैंने आपको बताया कि जिद की जो शिद्दत है या हद है, it can go to an extent where the child is crying. They might throw things, they might verbally say आप बहुत गंदी हो, आप बात नहीं मानती, मैं कभी बात नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं खाऊंगी, एनीथिंग जो आपकी हद है, राइट? आपको याद है, आपको बताया था कि दे आर ओनली टेस्टिंग कि किस हद तक आपको पुश कर सकते हैं. सो व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट दिस, आई रिमेम्बर हमारी बुक का एक बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था विच स्टेड इन माई माइंड, ऑल्दो इट्स एन ओल्ड एग्जाम्पल. वो पुराने जमाने का टीवी था ना, वो 2 एंटीना वाला, राइट? मेनी ऑफ यू मे माइट नॉट हैव सीन इट, बट एनीवे, तो वो ऐसा था कि कभी अगर सिग्नल सही नहीं आ रहे ना, तो हम पीछे से थोड़ा मारते थे और वो हाँ चल गया, वाओ. सो द नेक्स्ट डे यू लर्न, राइट? यू लर्न कि मैंने इसको थोड़ा मारा है तो वो चल जाता है या सिग्नल सही आते हैं. सो द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई द सेम टेक्निक, बट ट्राई इट अ लिटिल मोर, कि उस दिन तो चल गया था, आप थोड़ा सा और जोर से मारो या इधर से भी थोड़ा सा एडजस्ट करो तो मे भी चल जाएगा. सो द सेम फिलोसफी द चाइल्ड विल अप्लाई विथ यू. सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपके साथ वो जिद कर रहा है, और चाहे वो एक पैकेट ऑफ चिप्स पे है, या चाहे वो दुकान में एक डॉल है जो उसको चाहिए, या एक कार है जो उसको चाहिए, राइट? तो वो, उसको पता है कि उसको कितना चीखना है, या उसको पता है कि उसको कितना जो है ना, टेम्पर टेंट्रम इज द वर्ड दैट इज यूज्ड, राइट? कितनी जोर से एक तमाशा करना है लिटरली. और जितने लोग होंगे उतना ज्यादा एनर्जी के साथ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दे नो हाउ फार दे हैव टू टेक. इतना मैं चीखूंगी तो ओके, मुझे वो भी चीज मिल जाएगी. सो हियर ऑल्सो द ट्रिक इज फॉर यू टू लर्न that this is all part of normal development. All they are doing is they are testing their own identity, they are testing your boundary, but they are not doing anything जिसको हम कहते हैं deliberately. जैसे बहुत से मदर्स कहती हैं कभी कभी, मुझे लगता है जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है. तो आई एम रीअश्योरिंग यू कि मामा नहीं, वो जानबूझ के भी नहीं करा. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट it's not your fault, right? Remember, I was telling you in the last class also that there are people who come from families where the families around them give them feedback like तुम्हें नहीं पालना आता, या तुमसे ही नहीं संभल रहे, जो भी है. तो sometimes you begin to go into the cycle of self doubt कि हाँ शायद मुझे ही नहीं आ रहा, मुझसे ही नहीं हो रहे, मैं ही नहीं कर पाती. And doubt
is one of the emotions, जो भी negative emotions होते हैं ना, वो आपको एक vicious circle में डाल देते हैं, where you begin to go into that cycle of हाँ मुझसे नहीं होता, फिर मैं नहीं कर सकती, फिर मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, तो then you go round and round the same cycle. So I'm reassuring you that it's not your fault. It's not parenting and it's not deliberate. It's part of child development. The child is only doing what is part of his identity development. हाँ, इधर भी वही बात आती है, अच्छा फिर मैं क्या करूं? What do I do to manage my child? मुझे भी गुस्सा आ रहा है, सही है, जाहिर बात है मामा, आपको भी गुस्सा आ सकता है, even teachers, you can also lose your cool, right? But how do you as adults respond and how do you manage that child? So again, that is some delicate balance that we have to learn. And again, anything that has to be taught in terms of strategy will come in the later sessions. My aim here is to kind of give you an impression of what is normal development. अच्छा, अब हम आज से हमारे बच्चे को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और हम करेंगे कि देखें, फॉर मी, मैंने आपसे कहा if early 5 years are the magical period, the golden period, the baseline, जितनी मेहनत करनी है, जितना आपने सिखाना है, it's the best period. एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बुक दी, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, the concept is called window of opportunity, right? Window of opportunity is the optimal time period या the golden time period in which आप कोई चीज सिखा सकते हो. आपने शुरू में जब लॉग इन किया था तो आपने से किसी ने बोला था that you learned that you can always learn, and that's such a beautiful thing कि टेक्निकली जब तक हम जिंदा हैं, और खुदा ने भी कहा है ना, आखिरी सांस तक आपके पास वो अथॉरिटी है या वो क्या बोलते हैं, चांस है कि यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. उसी तरह हम कहते हैं लर्निंग इज ऑल्सो द सेम थिंग, यू कैन कंटिन्यू टू लर्न. ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, बट व्हाट इज द गोल्डन पीरियड, व्हाट्स द बेस्ट टाइम? इट्स द अर्ली 5 years, राइट? अर्ली 5 years के बाद आप देखो, मैंने स्क्रीन को ही रेड कर दिया क्योंकि मैंने इधर क्लियर लिख दिया है कि देखिए, अगर 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 अभी तक कोई प्रॉब्लम थी और अब आपने सॉल्व नहीं किया, तो इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन दैट इफ यू नोटिस that for instance your child is not got enough speech, हमने speech की बात last class में भी की थी, that if you feel that the child is now 4.5, 5 and is not speaking fluently, या आप वो देखते हो कि जब written में आता है लिखने के लिए, by 5 we expect that the child should be able to identify basic letters, numbers, vocabulary. In some schools they start writing words, shorter sentences, but point is that लर्निंग शुरू हो जाती, इवन इफ रिटन लर्निंग नहीं हो रही, ओरल लर्निंग तो हो रही है, राइट? सो इफ आई आस्क देम द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, ऑफ vocabulary, or I don't know, counting, and if you feel that the child is not able to do that or is forgetting or gets confused, right, then आपको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले चलो कुछ भी वजह से बड़ों ने कह दिया, आप बिजी थे और बच्चे हो गए, आप किसी चीज में लग गए, whatever happened, for whatever reason, the early 5 years have passed. But still, if you are facing a problem, अब नहीं इग्नोर करना, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा और, हम कहते हैं ना, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पीरियड और कम हो रहा है, राइट? सो बाय 6 we will be fully alert, whether it is related to the child's behavior, whether the child's learning, whether it's the child's speech, whether the child's comprehension, कोई भी चीज है आपको फील हो रही है कि या डेवलपमेंट में कुछ गैप आ रहा है, now you're not going to waste any time, right? The other thing that obviously as moms, as people of the society, we know that there is a global and universal trend where there is a change in the years of puberty. अब puberty जो है वो on paper या in the books, in terms of development, हम कहते थे गर्ल्स के लिए puberty होगी maybe 10 years के बाद, 11 years के बाद, but now we are seeing early puberty. What does early puberty mean? Means that now we are seeing puberty, yeah, growth changes in girls as young as 8 years and in boys as young as 11 years. इतना शिफ्ट आया. इसका ये मतलब नहीं है कि 8 years में periods आ रहे हैं बच्चियों को.
No, it's just that you see that there's a lot of sudden changes. And when we are saying sudden changes, in most cases, it starts with changes in mood, right? Girls के अंदर. And वो किस तरह से होगा? आप young mothers will tell us something like, ये अच्छी भली इतनी compliant बच्ची थी, मतलब कहना मानती थी, हर चीज करती थी, obedient बच्ची थी. But now I just see that she's becoming more and more फ्रस्ट्रेटेड या मोर एंड मोर अग्रेसिव या सामने जवाब दे रही है. या आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलोगे, यानी आप बोलोगे इतनी अच्छी इतनी कॉन्फिडेंट थी, आप बातों बातों पे उनको रोना आता है, छोटी सी बात होती है उस पर इतना रोना, इतना रिएक्ट करना, और कभी इतनी बड़ी बात हो जाती है तो फिर कोई कोई रिएक्शन ही नहीं. सो वही जो रोलर कोस्टर एंड मूड स्विंग्स वाली बात है जो वी सी लेटर ऑन, you begin to see here. And the trick is that when you start talking to these girls or these little children and we ask them, "बेटा क्या हुआ है आप?" So in many cases they turn around and say, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, because they honestly don't understand that a lot of their mood changes is related to early hormonal changes, basically, right? So be aware of these things, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि देखिए, mood and hormones directly impact your focus, right? आपका दिमाग ही नहीं चला, आप कहते हैं मेरा दिमाग फ्रेश नहीं है, आई कांट थिंक, आई कांट फोकस, आई कांट कॉन्सेंट्रेट. एंड इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, yeah, in terms of these young very young children, it starts impacting their learning, it starts impacting their relationship. तो कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ जाके हमें क्या नजर आता है? समटाइम्स हम उसका एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, दैट पढ़ाई में आजकल सही नहीं जा रही है और फेल हो रही है या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है या स्कूल से मिसाल के तौर पे कंप्लेन आ रही है. तो वी आर लुकिंग एट द एंड प्रोडक्ट, वी डोंट रियलाइज दैट इसका जो रूट है वो कभी कभी, हमेशा मैं नहीं कह रही, कभी कभी इट गोज डाउन टू हियर. So in terms of child development, these are the kind of things, yeah, these are the kind of red flags that you want to be aware of. And then if we move on to slightly bigger, obviously जो final हमारा age group है जो 11 to 16 years. Now it's a huge bracket. जब हम काम करते हैं तो इसको further break कर देते हैं, 11 to 13 and then 14 to 16. पूरे चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने आपको बोला ना, मेरे लिए सबसे मजे की एज है 2.5 से 4. मेरे लिए सबसे मुश्किल एज अगर कोई पूछेगा कौन सी है तो मैं बोलूंगी 11 से 13, because there is so much happening, there is so much happening in terms of the brain development. क्योंकि वो अंदर है तो हमें नजर नहीं आता, और हमें नजर नहीं आता तो हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा. तो in terms of also theories, in terms of also practical strategies, बहुत कम आपको मिलेगा. बड़ा निग्लेक्टेड एज है मेरे ख्याल में, लेकिन सबसे ज्यादा वनरेबल एज है. उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि देखिए, जब जब तक 10 years के अंदर अंदर के बच्चे होते हैं ना, हमने अभी 6 to 10 की बात की थी ना प्रीवियस स्लाइड में, 10 years के अंदर तक के बच्चे अभी भी बच्चे हैं, राइट? बच्चे का क्या मतलब है? आई मीन दैट हम स्टिल उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट कि अगर फर्ज करो आपके पास कोई बच्चा है जिसको 9 years का हो गया या 10 years का हो गया, उसको बिहेवियर के इश्यूज हो रहे हैं, या उसको पढ़ाई में इशू हो रहा है, या उसको आई डोंट नो मूड मूड में इशू हो रहा है, व्हाटएवर इट इज दैट कंसर्न्स दैट यू एज अ पेरेंट हैव. I still think that if the child is under the age of 10, आप किसी तरह भी कुछ ना कुछ कन्विंस करके अगर you bring them to a psychologist or a doctor or a clinic or whatever for help, I still think their mind is still there is a little hope that we can treat them like a child, and उनको हम कर देते हैं manage. But after the age of 10, once you hit 11, 12, certainly 13, ये वाला जो ब्रैकेट है, उसमें वनरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गार्डेड हो जाते हैं. अगर आप इस एज के किसी बच्चे को डील कर रहे हो और अगर पहले इसके मसले को आपने नहीं देखा, पहले अपने सॉल्व नहीं किया, जो लाइन यहाँ पे लिखी है, अनरिजॉल्व इश्यूज कैन गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट? इफ गॉड फॉरबिड कोई ऐसी फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट था, कोई मैरिटल क्राइसिस थे, कोई सेपरेशन या डिवोर्स का इशू है, मतलब कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा बच्चे का रहा है, या उसकी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहा है, अगर प्रीवियसली देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड यू वर सेइंग नहीं छोटा है, अभी छोटा है, इसको नहीं फर्क पड़ा, ये करा,
the minute they hit teenage years, the minute they hit 11 to 13, वो जितना unresolved trauma होगा, जितना unresolved emotions होते हैं, oh, they all seem to come out. They all seem to come out, and it comes out in very difficult ways. It is difficult for the family. It is difficult for the child also, right? ये मत भूलें कि अगर वो बच्चा, अभी हम आज ही शायद ये कोट आएगा जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि द चाइल्ड हु वांट्स टू बी लव्ड एंड काइंड ऑफ गेट अटेंशन समटाइम्स विल डू इट इन वेरी डिफिकल्ट वेज. वो आपको तंग कर रहा है, लेकिन याद रखें कि वो खुद भी तंग है, right? It's not something that they are just being hard on you. No, it's hard for themselves also. So 11 to 13, very, very vulnerable age, very difficult age. अगर कोई बच्चा struggle कर रहा है तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि do not leave it. Please seek help. ये वो age है जहाँ silent strugglers I call them, right? अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, ना वो इमोशनली एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं उनको हो क्या हो रहे थे, ना वो खुद समझ रहे होते हैं, right? कि what is happening to them. Unfortunately, in today's world, a lot of cases of self-harm and a lot of cases of early depression वो इसी एज में आ रहे हैं. इतने बड़े बड़े वर्ड्स मैंने आपके सामने यूज किए हैं, सेल्फ हार्म एंड अर्ली डिप्रेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज हियर, राइट? बट वी आर सीइंग इट. मैं आपसे वही बातें करूंगी जो मैं ओवर द इयर्स देख रही हूँ, और मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरा काम सिर्फ हमारे ही लोगों में, right? So despite having all surrounded by faith and going to madrasas and learning and majlis and all that, वो अपनी जगह, right? वो अपनी जगह. लेकिन अगर आप साइलेंट स्ट्रगल कर रहे हो, कोई बैटल आपके अंदर चल रहा है, चाहे वो आपके घर के एनवायरनमेंट की वजह से हो, पर्सनल इश्यूज की वजह से हो, आपके दिस इज द एज जहाँ पर लुक्स बहुत मैटर करते हैं, फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, पियर्स बहुत मैटर करते हैं, आपके ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, आपका आगे का करियर मैटर करता है. Unfortunately, there are schools who put so much mental pressure on children this age, right? कि आपका इन आपके जो results हैं, that will kind of dictate your future career. And there is so much mental torture on these children. And internally, there is a lot of hormonal change. अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर सर्च करो, teenage brain under construction. The brain itself of teenagers is going under so many changes. So I always say that we really need, as a society also and as a community also, to develop some programs, especially for teenage and teenage moms, teenage मतलब mothers of teenage children, right? कि उनको support करने के लिए, both as a parent but also as a child, बहुत ज़्यादा important है, right? क्योंकि ये कंटेंट age बुली वैसे भी भी कंसिडर challenging. करता है, Sorry, were you saying something? बुली भी कंसिडर करता है डिप्रेशन में लेने के लिए. आवाज आपकी क्लियर नहीं है, बतूल फिर से बोलो. मैं कह रही हूँ बुली करना कंसिडर करता है अर्ली डिप्रेशन में. देखो, ऐसा नहीं है साइकोलॉजी में कि दिस विल लीड टू दिस, राइट? कि ऑल एवरी टाइम अ चाइल्ड इज बुलीड विल लीड टू डिप्रेशन. नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से. लेकिन हाँ, अगर कोई चाइल्ड बुली हो रहा है या उसको अब्यूज किया जा रहा है, एंड आई मीन वर्बल अब्यूज ऑल्सो, तो वो डिस्टर्ब तो होगा ना. जाहिर बात है, कोई आपसे कुछ कह रहा है तो वो डिस्टर्ब होगा. वो हर बच्चे के लिहाज से वो किस तरह कोप करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम देयर. सम चिल्ड्रन गेट द सपोर्ट, सम चिल्ड्रन आर एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड दे मैनेज through emotional counseling. Some children genuinely become so depressed, right? Especially अगर उनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई support system नहीं है. Or sometimes, unfortunately, I'm telling you, now I've seen everything in my life, right? Sometimes bullying happens from home. I have seen, क्या मैं बोलूं, मतलब मैंने अपने अपने उससे सुना है कि एक फादर अपनी बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं उसके कलर के ऊपर. मिसाल के तौर पे, चलो, एक माँ अपनी बच्ची को ऐसा बोल रही है क्योंकि उसकी शक्ल उसके बाप में मिलती है और बाप उसको पसंद नहीं है. मतलब आप समझ रहे मेरी बातें? तो मैं कहती हूँ, इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो फिजिकल अब्यूज हो रहा है या जो टॉन्टिंग हो रही है या जो बुलिंग हो रही है, वो अपने घर वाले, अपने लोग कर रहे हैं. उसकी क्या कैफियत होगी? सो नॉट 2+2, बट यस, देर इज अ रिस्क फैक्टर. देर इज अ रिस्क फैक्टर दैट अगर ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है. और उसकी डिस्टर्बेंस सिर्फ वहां तक नहीं रहती ना. मसला क्या है, उसकी डिस्टर्बेंस उसकी पूरी लाइफ को डिसफंक्शनल कर देती है. उसके अल्टीमेटली उसकी पढ़ाई पे जाके इफेक्ट हो जाता है. और इस एज पे अनफॉर्चुनेटली जिस सिस्टम में हम हैं,
वो आपकी पढ़ाई, आपके ग्रेड्स, आपके नंबर्स, आगे आपकी जो है ना कॉलेज चॉइसेस और करियर पाथ में मैटर करता है। तो इट काइंड ऑफ जस्ट मेक्स एवरीथिंग अ लिटिल शेकी। इसीलिए मैं आपको शेक कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा आपके आसपास में ऐसा है जो आपको लग रहा है स्ट्रगल कर रहा है, तो please reach out so that we are able to guide you to be able to help the child. So I'm going to stop here for a few minutes क्योंकि मुश्किल मुश्किल बातें हो गई और अब मुझे आपके साथ थोड़ी सी केस स्टडीज डिस्कस करने थे, बट आई हैव अ few minutes। अगर कोई जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है, anything which you feel that you need to understand? मुझे पूछना है क्वेश्चन। I need to ask a question. जी जी बोलो बस। जैसे how to gauge such a student or a child that that person is struggling inside? What are the symptoms or how to gauge? What age बस? I'm talking about a teenage guy. ओके। और आप क्या फील कर रहे हो कि मतलब what is the child struggling with? जो आप कह रहे हो ना कि the child। Sometimes, yeah, sometimes children are very good at dramatizing and they hide their emotions. So बिल्कुल। how to gauge whether the person is like hiding or is opening up properly? डेफिनेटली, मैंने भी How to आपको बोला ना, talk about? मेरे लिए 11 to 13 को मैं बुलाती हूँ साइलेंट स्ट्रगलर्स हैं। वो नहीं नजर आ रहा होता है, लेकिन अभी जो हम केस स्टडी करेंगे ना उसमें से एक केस यही है, तो वो शायद आपको उसमें थोड़े से आंसर्स मिल जाएंगे, एंड देन आई विल फर्दर एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू हियर। और मुझे ये भी पूछना है कि इन बच्चों को हम डील कैसे करें, यानी बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल। जब वो और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि तो हम क्या करें, जब बच्चे बिल्कुल। जाहिर है ज्यादा होंगे, फैमिलीज हैं, और छोटी अगर थोड़ी देर फैमिलीज है, पहले तो आपने डील सुना तो कैसे मैंने करते आपको हैं। क्या बोला कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ उनको देखना, ऑब्जर्व करना, कन्विंस करना है कि टू सीक हेल्प, राइट? आई डोंट थिंक, देखो एक बात याद रखो, बहुत दफा मैं आपको मना करूंगी कि आप कुछ भी नहीं करो बच्चे के साथ, स्पेशली अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस है। उसकी वजह यह है कि मामा, even you get emotionally disturbed then, right? Because if you feel that your child is being bullied or your child is being abused or your child is struggling with something, चाहे वो चाहे 16 साल का हो गया और उसकी कंप्लेन ये है कि मेरे को दोस्त नहीं बनते, मिसाल के तौर पे, राइट, पढ़ाई में वो सही भी चल रहा है, बट ही इज जस्ट सैड बिकॉज ही डजंट हैव अ फ्रेंड, एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग। बट mama, it will make you sad that your child is sad. फिर you are sad, the child is sad, and when you start helping each other, इट जस्ट मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, जो जो काम एक काउंसलर को करना चाहिए वो आप वहां पे रखो, आपको हम डिफरेंट तरीके से गाइड करेंगे, तो व्हाट एल्स कैन यू डू? और उसका उसका जो ताल्लुक होगा वो वहीं से होगा जो मैंने आपको शुरू में कहा है, इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, राइट? सम एक्टिविटीज लाइक दैट। So for those of you who have gone through the book, there is a whole chapter in which I have talked about activities that you can do in family time and bonding activities that you can do to help. बट राइट नाउ जो हमारा मकसद है वो यही है समझने के लिए कि अगर आप देख रहे हो कि देर इज समथिंग हैपनिंग, देन प्लीज डिस्कस द केस इंडिविजुअली एंड वी कैन गाइड यू ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। अच्छा, यहाँ पे ये टेबल इधर क्लियर नहीं है, लेकिन बुक में बहुत क्लियर तरीके से मैंने बताया था। टेबल का मकसद यही है जो मैं बार बार कह रही हूँ, दैट स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, इफ यू सी एनीथिंग दैट यू आर कंसर्न अबाउट, प्लीज डू नॉट लीव इट, प्लीज डू नॉट डिले, और फौरी तौर पे आप discuss it with somebody and get some professional opinion, right? So what we will do is we will go through these cases one by one, और अब तक जो हम बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, याद रखें ये आपके बच्चे हैं, ये घर के बच्चे हैं, ये हमारे खेलते बच्चे हैं, राइट? एंड आई जस्ट वांट यू टू थिंक एज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड हु हैज दिस इशू। और अगर किसी को पता चले कि अच्छा आपने चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया है, आप इस मदर को क्या मशवरा देंगी, क्या गाइड करेंगी? व्हाट डू यू थिंक वी शुड टेल दिस मदर? एनीबडी वांट्स टू ट्राई दिस वन? पहला वाला केस भी पड़ेगा। May I? यस नर्जस। My little boy is 24 months old and he is just saying a few words. He has a vocabulary of about 6 words. He understands everything but does not speak. What should I do? How many words is he speaking? 6. 6, right? What are the kind of questions you want to ask the mom? क्या पूछोगे इसको? Is he able to explain what he needs? Beautiful, बिल्कुल. He's not सेकंड, speaking. मदर बेबी का इंटरेक्शन कितना है डेली बेस पे? Excellent, excellent. और क्या बोलेंगी?
बोल फादर नहीं का रहा, इंटरेक्शन कैसा समझता है? सब है। फादर का इंटरेक्शन कैसा है? और इसको क्या चीज इसको हेल्प करेगी? मदर फादर की बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग। और सबसे ज्यादा हमें किस चीज पे काम करना है इसके? स्पीकिंग पे। Speech. शाबाश, right? So what will the recommendation be? What are you going to recommend the mom? maybe he has Therapy. to go to a speech therapist. People, you can go to a speech therapist, and at home what will you recommend? आप क्या बोलोगे? स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ, जरूर जाओ, और घर में क्या करो? इससे बहुत बार बातें। बातें करें शाबाश, बातें करें। और दूसरा क्या है? या कमेंट्री करें, जो भी आप काम जब करें। वो बातें, कमेंट्री। जब वो वन कुछ मोर थिंग, समझाने की वन मोर थिंग जब दैट वो यू कुछ हैव टू डू। समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको आप वर्बली उसको बताओ कि अच्छा आपको ये चाहिए, ब्यूटिफुल, वो ताकि उसकी कमेंट्री में आ वोकैबुलरी गया, जाए। राइट? सो ओके। so for instance the child is I don't know, mug, अपना जो कप है दूध का, उसको पॉइंट कर रहा है, राइट? सो यू लाइक, हाँ अली, यू वांट योर कप, ओह लुक आई एम पोरिंग योर मिल्क। इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, जो लैंग्वेज आपको करनी है, राइट? एक और चीज है जो हेल्प करेगी इस बच्चे को। क्या हेल्प करेगा? रीडिंग। I was about to say this. Reading. Reading is magical. So whether you do flashcard reading, right, or you sit with a child and keep a book and read. अच्छा, when I said sit with a child, अब ये कितने महीने का है? 24, 2 24, साल का है। 24 months is how many years? 2. 2 years. राइट? प्लीज याद रखना, और ये बहुत रफली मेजर किया है, लेकिन रफ एस्टिमेट ये है कि योर अटेंशन स्पैन इज 1 minute per age. Now, I'm not going to ask you your age, लेकिन आप खुद अपनी मेजर कर लो, राइट? कि अगर आप इधर 20 years के हो, तो यू एक्सपेक्ट योर माइंड टू स्टे फोकस्ड फॉर अबाउट 15 to 20 minutes, एंड देन इट विल वॉन्डर एंड देन कम बैक। ऐसे ही होता है ना हम सबके साथ, कि थोड़ी देर के लिए हम फोकस करते हैं, एंड देन ओके, एंड देन यू कम बैक, राइट? सो इफ यू हैव अ 24-month-old baby or a 2-year-old baby, what is your maximum attention span for this child? 2 मिनट। तो अगर वो 5 से 10 मिनट बैठ गया, तो मम वेल डन, राइट? You're not going to make him sit for 1 hour. हाँ, अगर हमें 1 hour करना है या इवन 30 minutes करना है, तो हम क्या बोलते हैं? You switch between activities. So you at least have 2 to 3 activities planned. So maybe you have 2 flashcards or 5 flashcards, and maybe you have 1 puzzle and then 1 book. तो आपका उस तरीके से half an hour complete होगा. But you're not just ऐसे नहीं करना है कि एक हाथ से पकड़ के बैठो मैं पढ़ा रही हूँ. It's not going to work. Right? Learning has to be fun and learning has to be voluntary. You want to enjoy that process. तो ये वो चीजें हैं कि अगर 24 months का है, 2 years का हो गया, कम वोकेबलरी है, तो आप चेक करोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई वर्ड्स, क्योंकि किसी ने अभी आजकल, मैं कह रही हूँ ना, ये एक इसके ऊपर मैं पूरी पूरी कहानी सुना सकती हूँ, बट आजकल एक चीज है जो हम कहते हैं कि मम्मीज यू आर सो बिजी, यू हैव सो मच वर्क। सो हम क्या करते हैं, हम पुराने जमाने में टीवी के पास लगा लेते थे, अब हम स्क्रीन पे छोड़ देते हैं हमारे बच्चों को। a lot of the children जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, वो एक टर्म है जो कि पहले नहीं था। कोविड के बाद ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, इमेजिन, ये था ही नहीं साइकोलॉजी में। और द टर्म इज वर्चुअल ऑटिज्म, राइट? कि जो जो बच्चा है वो ऐसा डेवलप हो रहा है कि सारा दिन, क्योंकि वो स्क्रीन पे होते हैं, एंड व्हेन आई से सारा दिन, मैं कह रही हूँ 24 घंटे में से वो बच्चे 15 से 18 घंटे स्क्रीन पे होते हैं, राइट? एंड बिकॉज दे स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द स्क्रीन, नॉर्मल ह्यूमन स्पीच डेवलप ही नहीं हो रही उनकी, राइट? नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा उनका, राइट? उनकी ग्रोथ ही सही नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बच्चे आते हैं जिनकी स्पीच कम होती है, पहले हम चेक भी कर रहे हैं कि क्या नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी अगर स्पीच डेवलप नहीं हुई, तो वी विल टेल यू, ओके, लेट्स गेट एन ओपिनियन फ्रॉम अ स्पीच थेरेपिस्ट, बट प्लीज try and start reading, do communicate with him, talk to him, right? I didn't continue that. अच्छा जी, ये वाला बड़े मजे का, ये कोई पढ़ेगा? Anybody wants to read this? You have a 3-year-old child, or what is the mother worried about? Not He's sharing. not sharing. And anybody has a child this age? No. किसी के पास है
your sibling or your own child the same Yes, age? yes, I have. I have. Okay. Fatima, what are your thoughts on this then? वो करता है शेयर या करती है Sorry? शेयर? वो शेयर करती है? इस टाइम कर लेती है इस टाइम शेयर कर लेती Okay, I है can't hear you, but I'm saying any thoughts from anybody कि अगर आपके पास कोई मदर है जो आ रही हो बोले मैं 3 साल का बच्चा, मुझे बहुत अफसोस होता है ये अपना कोई काम या अपनी कोई चीज शेयर ही नहीं करता, राइट? मेरा मेरा एक 2 साल का है और एक 4 साल का है Okay, सो wonderful. So have you ever had such concerns? आई थिंक इट इज एज अप्रोप्रिएट अगर वो शेयर कर रहा है। जैसे मेरा 2 ईयर ओल्ड है, वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। और जो 4 ईयर ओल्ड है वो भी पहले नहीं करता था, बट आई डेंट पुश इट Excellent, excellent. बिकॉज आई बिलीव कि बच्चे की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी अपनी चीज़ों पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल वो शेयर बिल्कुल नहीं कर रहा तो हम उसको शेयर फोर्स ना करें। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिटवीन द एजेस ऑफ 2.5 या 2 to 4 the child development के हिस्से में आइडेंटिटी डेवलपमेंट हो रहा था, एंड व्हेन यू आर डेवलपिंग योर आइडेंटिटी यू स्टिल डेवलपिंग अ सेंस ऑफ व्हाट इज योर्स, राइट? सो एट दैट टाइम शेयरिंग हम कहते हैं डेवलप ही नहीं हुई होती है। तो टू फोर्स अ चाइल्ड टू शेयर, लाइक फॉर इंस्टेंस आई नो ऑफ मदर्स हु टेल मी कि हम मिसाल के तौर पे आई नो मजलिस में गए और हम बच्चे के लिए चिप्स का पैकेट लेके गए थे, और वो बच्चा जो है वो 2 साल का है, 2.5 साल का है, एंड मम्मा ने निकाल के एक चिप्स दूसरे बच्चे को दिया शेयरिंग सिखाने के लिए, एंड देन हर ओन चाइल्ड गॉट सो अपसेट, लाइक मम्मा मुझको चाहिए ही नहीं अब ये, आई डोंट वांट दिस पैकेट, गिव, आप पूरा उसको दे दो, आपने क्यों दिया मेरी चीज, राइट? तो उसकी जो रूट है वो यही है। अपना आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दैट यू वांट टू टीच द चाइल्ड, आप एक अच्छी वैल्यू है शेयरिंग, यू वांट टू टीच देम शेयरिंग। सो व्हाट माय रिकमेंडेशन हियर वुड बी कि मामा आप सिखाओ, आप बोलो, लेकिन वो जो सामान है आपने बात बोली वो अच्छी बात है, यू ऑलवेज आस्क द चाइल्ड लाइक वुड यू लाइक टू गिव वन, या आप उसको बोलो आप एक दे दो उसको, राइट? समटाइम्स दे विल, समटाइम्स दे विल नॉट, बट इफ आफ्टर द एज ऑफ 5 फिर भी वो शेयरिंग नहीं कर रहा, या फिर भी वो जो है ना इस चीज पे बड़ा अपसेट हो जाता है, देन इट्स समथिंग मे बी वी कैन थिंक अबाउट। अच्छा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मे बी वो शेयरिंग कर रहा है, बट 5 के बाद जो डेवलप होता है ना उसको हम वाकई कॉम्प्रोमाइज ही कहते हैं, दैट मे बी दे डोंट फील लाइक डूइंग इट बट दे लाइक ओके, राइट, आई विल। So it could be that element also. Sometimes they willingly share, sometimes it's like, oh, okay, I allow this to happen. But that element starts developing after the age of 5, not before that. So itna jaldi panic nahi kare. हाँ, it's something that you should enforce because it's a value, but it's not something that you should worry about too much before the age of 5. अच्छा, ये वाला कोई पढ़ेगा? May I? Narjis again, go ahead. कोई पढ़ ही नहीं रहा तो मैं ही पढ़ लेती हूँ. Please, please. Mom says her 9-month-old baby was very friendly, but all of a sudden he is so clingy and does not want to go to anyone, not even his dad at times. कितने महीने का है? The baby 9 is months. 9 months, right? How old is your baby, Narjis, now? He is 15, going to be 15 months. माशा वंडरफुल। अच्छा भाई, एनी थॉट्स ऑन दिस कि सबके पास जाता था, बहुत फ्रेंडली था, अब अचानक बड़ा क्लिंगी हो गया है, किसी के पास नहीं जाना, समटाइम्स मॉम Uh, से वॉशरूम भी नहीं मैं सुकून से जा सकती, इतना रोता है, ही जस्ट वांट्स टू क्लिंग टू मी। क्योंकि वो फेशियल अवेयरनेस आ जाती है ना कि उसको समझ में आता है अच्छा ठीक है ये मम्मा है. हम्म वो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव होता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये आया था एक स्पैन एली का भी. हाँ, ओके। He used एंड to हाउ cling लॉन्ग on डिड me दैट all the लास्ट? time. फ्रॉम 9 months to He still does. okay, that लेकिन makes अभी फॉरएवर। yeah, लेकिन yeah, exactly. But at least ये होता है कि he goes to everyone, but he needs assurance कि अच्छा अम्मा यहाँ पर है. Mama is there. Perfect. And Yes. anybody else? Any thoughts on this? कि मैंने particular एक 9 months लिखा है. I could have written 6 months or whatever, right? Any other thoughts? What is it? आई गेस इट्स सेपरेशन एंजाइटी। हम्म, Oh बेबी yes. है कि वो अपनी मम्मी से डिफरेंट एंटिटी है। बिल्कुल सही बोलो। या दैट्स इट।
So this is part of the child development. Again, जो हम बातें करें वो normal child development की बात करें, right? Now, go and read on separation anxiety. अगर आपके पास इतने साल का बच्चा है and you are struggling with something like that, I would say कि अगर सब घर वाले नहीं तो एटलीस्ट बाबा को तो पता होना चाहिए, because this is the kind of stage where फिर लोग क्या बोलने लगते हैं आपसे, क्या बोलते हैं लोग? गोद का आदि कर दिया है तुमने। है ना? they would say आदि कर दिया है, अपने से चिपका के रखा है, ये चाहती नहीं है कि हम वहाँ आए। people say मैं तो something कहती थी हाँ नहीं चाहती हूँ। and some go to the extent of इसने कुछ किया है बच्चे के साथ या हमारे साथ, मतलब they would say things which upset you. Now the problem is, mama, that you are already upset because you are tired, because you want a break, but you don't get that break. तो आप खुद इतना थक रहे होते हो, फिर ऐसी अगर कोई बातें कर रहा है तो you will just go into the cycle of negativity and, like I said, that emotional outburst. So at least you and Baba need to come on one page. Mommy and daddy need to understand कि जो भी हो रहा है, it's not something that I'm deliberately doing. Dads can get very genuinely upset कि क्या हो गया, मेरे पास नहीं आता, and then you will see that sometimes they kind of fade away themselves कि ये खुद नहीं आता है मेरे पास, right? अब तो मैं तो चाहता हूँ ये खेले या whatever it is. And those are the kind of things that if you're not mentally prepared for it, and if you don't understand why this happened, it's just sometimes can also cause a relationship conflict between mom and dad, which just makes it more and worse. तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो। अच्छा, अब सवाल है क्यों आता है। अब ये क्यों जो है ना, बहुत सारी क्यों जो है ना वो हमें नहीं मालूम कि डेवलपमेंट में क्यों आ रहे हैं, but it's part of the normal developmental cycle. And like you said, Nargis, it would start around 9 months and it would normally fade away. The way it came, it should fade away around 15 to 18 months, right? आहिस्ता आहिस्ता, inshallah, if this continues, and particularly continues till the age of 2, जब 2.5 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मॉन्टेसरी स्कूल या प्ले ग्रुप में, और अगर वहां पर एडजस्टमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, then we know that we are looking at something else. But normally you will see that inshallah it will fade with time. But here it's important for you and your family around you, your husband, the baby's father, to be able to understand that this is not deliberate again, right? अच्छा, ये वाला क्या है जो टीनेजर्स की बात कर रहे थे, उसमें से अगर कोई ये पढ़ना चाह रहा है, दिस माइट गिव यू सम। Yeah, I'll read. जी तो बस, थैंक यू। Mom says we and my son were always so close. Don't know what's wrong with him. He is 12 years old now, and these days he does not even come close, sit and talk to me. I'm worried he is in the wrong crowd or he is emotionally upset. You had some thoughts like this only in mind? आपने या किसने पूछा था कि कैसे जी detect मैंने करेंगे? पूछा था। यही पूछ रही थी कि आप कैसे पता चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है, यही पूछ रही थी ना? Exactly. मतलब जी एज अ मदर, अगर आप अपने बच्चे को, जो कि स्पेशली वो बच्चा जो पहले बड़ा जॉली था, बड़ा एक्टिव था, बड़ा एक्सप्रेसिव था, अगर उसके अंदर ये चेंज देख रहे हो, देन एज मम्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट कैन मेक यू वेरी एंशियस, दैट क्या हो रहा है, ये बताता भी नहीं है, और अंदर अंदर you feel that there is something wrong, but you can't allow him, or he can't express himself basically, right? अच्छा, एज अ मम आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या हो रहा है इसके साथ? must be facing something. Somebody might be bullying him. बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बुलिंग कहते हैं। मैंने जितने अब्यूज के केसेस देखे हैं, आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब देयर इज सो मच हैपनिंग। आई डोंट वांट टू बिलीव द वर्ल्ड इज Fine. बिकमिंग बैड, बट इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, वाकई, राइट? सो बहुत चीजें जो है वो एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड आपके दिमाग में आएगा। अच्छा, इस पूरे केस को थोड़ा सा हम ब्रेक करके देखेंगे, राइट? हमने पहले जुमले में क्या लिखा है कि सबसे पहले हमें बैक ट्रैक करना है ना। आई वॉन्ट यू एंड आई वॉन्ट एवरीबडी एल्स टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक बच्चा आ रहा है बिटवीन द एजेस ऑफ 11 to 13, अगेन वो वाला ब्रैकेट, साइलेंट एज, and you feel that there is a change but the change is not being expressed, तो how do I know that मेरे बच्चे को डिस्टर्ब किया जा रहा है या मेरा बच्चा डिस्टर्ब है? You see the difference?
right? Is my child struggling with something internally, or there is something that is making my child stressful? This is what we want to understand. तो सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाऊंगी, मैं आपसे ये बोलूंगी कि अच्छा, जब वो पहले मतलब 10 years से पहले, राइट, हाउ वाज ही बिफोर? क्या सब कुछ सही था? सब कुछ सेट है? एवरीथिंग वाज फाइन? ही वाज अ हैप्पी हेल्दी गो लकी चाइल्ड? ही वाज cheerful, ही वाज एक्सप्रेसिव? इफ यू टेल मी हाँ सब कुछ सही था, तो मैं बोलूंगी ओके, सो लेट्स फोकस ओनली ऑन नाउ, राइट? क्योंकि गॉड फॉरबिड आप मुझे कहोगे कि नहीं बचपन में बहुत मसाइल थे, घर में मसले थे इसके साथ, व्हाटएवर, देन वी नो वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट चैप्टर. बट इफ यू टेल मी दैट एवरीथिंग वाज फाइन लेकिन आजकल ये करने लगा है, तो फिर हम फोकस करेंगे उस आजकल पे. अब उस आजकल में मैं आपसे ये पूछूंगी कि मामा, अगर इसकी मूड वगैरह को मैं एक साइड पे रख लूं और बाकी चीजें आपसे पूछूं, मिसाल के तौर पे उसका खाना पीना सोना नमाज, उसकी लेसन, उसकी पढ़ाई, उसके ग्रेड्स, सब कुछ ठीक है, राइट? जनरली स्पीकिंग एवरेज, लेकिन सब कुछ ठीक है. इफ यू टेल मी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सही है, बस चुप हो गया है अपने मतलब कमरे में रहता है, इतना बातें नहीं करता, इतना वो नहीं करता, तो फिर नाउ वी नो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द विंडो ऑफ इमोशंस, राइट? फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया कि देखिए प्यूबर्टी इज अर्ली, एंड फॉर मी इफ पर्सनली यू आस्क मी, आई ऑनेस्टली थिंक प्यूबर्टी इज हार्डर एंड मोर चैलेंजिंग फॉर बॉयज देन गर्ल्स. देर इज सो मच दैट गर्ल्स आपस में 4-5 लड़कियां बैठ कर डिस्कस भी कर लेती हैं, बात भी कर लेती हैं, रो भी लेती हैं, बट इट कम्स आउट, राइट? In girls, the emotional roller coaster comes out in some way or the other. It is channelized. But in many cases, boys cannot talk about the changes that they are imagining or feeling inside. So it's very difficult for them to share this. And especially मैं आपको बता रही हूँ कि वो बच्चे जो अच्छे घरानों के हो, जहाँ अच्छी तरबियत हो रही होती है, जहाँ एक दीनी इन्वायरमेंट है, जहाँ एक रिलीजियस इन्वायरमेंट है, जहाँ ब्यूटीफुल वैल्यूज हैं, वो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं between 11 to 13. So that is why preparing them for puberty, talking to them, if see, I have worked with mothers who मुझे कहती हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड नहीं बात करेंगे बेटे से, वो नहीं कंफर्टेबल है या कोई भी नहीं है. I know mothers who have spoken to their sons about it and mentally prepared them for everything. But the more you prepare them, the better it will be for them to deal with whatever physical, emotional roller coaster they are going through, right? if आप मुझे बताओ कि इस तरह के चेंजेस आप देख रही हो उसमें, लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं पहले भी मसाइल थे, और अगर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं वो इतना डिस्टर्ब है कि उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, पढ़ भी नहीं रहा, फेल भी हो रहा है, लड़ाइयाँ उसकी हो रही हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, then I know that it is more complex. Then maybe we are not just looking at hormonal physical changes, maybe we are looking at some other abuse, or maybe we're looking at, God forbid, some other sort of bullying, या कोई ऐसा targeted stressor जो उस बच्चे को इफेक्ट कर रहा है. I hope that answers and clarifies what I'm trying to say and the difference between the two. Does that make sense, Vasu? Yes, ma'am. Thank you so much. दोनों समझ आ गया कि या तो सिर्फ इमोशन की चैलेंजेस हैं, या फिर खुदा Can I और कहाँ ask a से आप question here? पकड़ोगे? जी. I just wanted to ask that who do you think is more preferable? Like father should talk or mother should talk, and how to go about? ऑफ कोर्स देखो, आइडियली ऑब्वियसली मेरे ख्याल में शरीयतन भी कंफर्टेबल भी, और सोसाइटी के जो उससे वैल्यूज के हिसाब से भी, मम्स यू टॉक टू गर्ल्स डॉटर्स एंड देन फादर शुड टॉक टू बॉयज, राइट? बट लाइक आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको शर्माना वो नहीं करना. हम कहते हैं ना, एक ही चीज मैंने इमरान खान से सीखी है, वो ये है कि आपको घबराना नहीं है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. ये शरीयत का हिस्सा है, साइकोलॉजी नहीं है, ये शरीयत है. So if for whatever reason you don't have a suitable male teacher, right, तो बेहतर ये है कि मामा आप ही बताओ, डिपेंडिंग अगर आपका पहला वाला बॉन्ड स्ट्रांग है. इसीलिए आप पूरी बात ये होती है कि देखो, आप एक 16-year-old बच्चे को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पहले उसकी बेस स्ट्रांग की है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, then it's easy for you to talk to a child, right? But having said So it is preferred that father should talk, and yes, but it's the right age, right? yes, Okay. but then अगर फादर के साथ वो बॉन्ड ही नहीं है, फादर के साथ वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, राइट, तो फिर
जस्ट थिंक अबाउट इट। या पता हर घर के लिए डिफरेंट होता है, राइट? मेरे लिए बड़ा आसान है कहना कि नहीं फादर शुड टॉक, बट obviously in every house it's very different, but to talk is more important and this is the right age to talk. Having said that, बहुत प्यारे प्यारे programs आ गए हैं। We in our platform we do जश्न बुलूक for girls, we don't do for boys, but there are certain centers जो कि boys का भी ऑफर करते हैं और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो कुछ थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा, लेकिन जो भी सिखाना है वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स से आना चाहिए। डेफिनेटली डोंट लीव इट ऑल के कारी साहब या मौलाना सिखा देंगे, नहीं, इट हैज टू कम फ्रॉम यू आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द राइट एज, राइट? इसको डिले नहीं करो, प्लीज प्लीज करो। Thank you so much. One thing that if you have a child you can do, I love doing that, और मैंने आपके ग्रुप में वो डाल दिया था पहले से, अच्छा याद आया। मैंने एक चेकलिस्ट डाली है आपके ग्रुप में चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, बिकॉज इट कैन गेट अ बिट ओवरवेलमिंग फॉर द बॉयज ऑल्सो जब आप ऐसी बातें करते हो, और गर्ल्स ऑल्सो। तो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज दिस चेकलिस्ट, क्योंकि उसमें वो वाली बातें होती हैं कि इस एज पे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो यू कैन लाइक ओके आई एम डूइंग इट फॉर ऑल माई चिल्ड्रन, and let's see what development wise what you have achieved, what more you can do, क्या changes आते हैं उसके अंदर, थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस होगा, and that's a good place to pick. Other thing is children and teenagers love watching, जो मैंने आपसे कहा teenage boys या teenage brain under construction, वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो भी मैं शेयर कर लूंगी, एंड इट्स समथिंग दैट दे एंजॉय। दे लाइक देखा मम्मा मैं ऐसे नहीं करता, ये मेरे साथ हो रहा है, सो दैट empowers them. And once you build that connection and trust, then you can talk about more challenging things. Okay, so a few more cases inshallah. This one is also very very important. कोई पढ़ेगा जिसके पास इस साल के बच्चे हैं between 2 to 4, अगर किसी के पास है, I think they एक्सक्यूज would मी, enjoy. मैं एक बात मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहूंगी। जी वो जी ये कि जो आप अभी प्रीवियस बोलो बोलो जो अरीज। अभी आप प्रीवियसली बात कर रही थी जी कि फादर्स को शेयर करना चाहिए। एक तो इस एज में बच्चे ज्यादातर खासतौर पे लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे बेटे के साथ ये बात की कि वो इतना एक्सप्रेसिव है ही नहीं, सही। बाय नेचर वो जो है वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ट्रू। अच्छा, अब जनरली ये होता है कि बच्चे फादर से थोड़ा सा शायद डर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता है, गैप होता है। अगर आप फादर को कन्विंस कर ही लें और वो बात कर ही लें बच्चे से, तो लेकिन वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि शायद अपने बॉय से शेयर, अपने फ्रेंड से शेयर कर ले, रादर देन वापस वो अपने फादर के पास आके वो चीज डिस्कस करे। ट्रू। ऑल्दो अगर उनको बड़ा वैसा ओपन ग्राउंड भी दे दिया जाए कि वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू हियर यू इनफैक्ट, तो बिल्कुल। लेकिन उनके पास एक थोड़ी सी हेजिटेशन आ रही होती है। ट्रू। ट्रू। देखो अरिश, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यही समझाया आपको, मैंने कि देखिए आइडियल सिनेरियो में सम थिंग्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्यूबर्टी चेंजेस शुड कम फ्रॉम मेन, यानी फादर या मामू या कोई अंकल जो भी है, फॉर द बॉय, राइट, एंड अ फीमेल फॉर द फीमेल। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो मैंने आपको अभी बोला है कि आई हैव वर्क विद मदर्स जहां पर या तो फादर इंटरेस्टेड ही नहीं या फादर नहीं है, एब्सेंट है, डिवोर्स है, सिंगल मदर है, वो कहाँ जाएगी, राइट? तो ऐसे मदर्स हैं जो करते हैं। मेरा मसला ये है कि आप ये इस सोच में मत पड़ो कि कोई और बताएगा और सिखाएगा। आपकी ये जिम्मेदारी है और आपको ये बताना है और सिखाना है और मेंटली प्रिपेयर करना है, राइट? जिसके अंदर आपके लिए आसानी ही होती है कि आप दोनों एस्पेक्ट में बात करो। आप उसको बताओ ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस में ग्रूमिंग और सेल्फ केयर को कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, और फिर शरीर तौर पे क्या क्या जिम्मेदारी है वो बताना जरूरी है। पहले हम वेट करते थे बच्चा 15 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि प्यूबर्टी जल्दी आ रही है। जब जल्दी प्यूबर्टी है तो मेंटली भी तो तैयार करो बच्चों को, राइट? I have seen boys who look so small still, and I'm using the word small. छोटे छोटे लगते हैं लेकिन बालिग हो गए, राइट? अब ये है, there is a trend and you have to understand. So बताना ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपकी वो बात थी कि फ्रेंड्स के पास जाएंगे जाएंगे, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई हैव, बट जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, फॉर गर्ल्स टू स्पीक टू अदर गर्ल्स या स्पीक टू फ्रेंड्स इज इजी।
boys don't even talk to other boys or their friends about such things, physical changes, emotional changes, वो लोग नहीं इतना बात करते, स्पेशली बार बार मैं आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ, बिटवीन 11 to 13 बहुत चैलेंजिंग एज है, बहुत साइलेंट एज है, और अगर हमने इनको सही केटर नहीं किया, सही डायरेक्शन नहीं दिया, तो बहुत सारी बाद के मसाइल जो है ना, वो हमें इस एज पे नजर आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्योंकि कोई शेयर करने वाला नहीं था। अच्छा, इधर ये बात यहाँ पे मैंने आपसे करने सिर्फ इसी पे आधे घंटे की बात हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ये एक जुमला लिखा हुआ था, डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, ही यूज्ड टू बी वेरी क्लोज, कम सिट, टॉक टू मी एंड हग मी, मिसाल के तौर पे। अब बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 11 साल के भी बच्चे, समटाइम्स आप देखोगे वो लोग ऐसे बैठे बैठे आके मामा को हग कर लिया। अब आप नोट कर रही हो कि मे बी व्हेन ही इज बिकम 11 to 13 वाला जो ब्रैकेट है, मे बी यू फील कि मेरे साथ नहीं बैठता, पहले हमारे साथ बैठ के खाना खाता था, अब अपने कमरे में खाना खा रहा है, बातें भी नहीं कर रहा, मेरे पास भी नहीं आ रहा, मुझे हक भी नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी चीजें जो आप एज अ मम नोट कर रहे हो, मैं आपको दोबारा यही पूछूंगी कि देखो बाकी सारी चीजें सही है, अगर बाकी सारी चीजें सही है, तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज गिव हिम सम स्पेस, स्पेस टू ग्रो। लेकिन आपका काम क्या होगा? आपका काम होता है ऐसी ऐसी चीजें बोलना, ओ अली मैं तो बड़ा मिस करती हूँ आपको हग करने के लिए, है तो उसको पता हो कि ममा इज देयर, या माई फैमिली इज देयर, माई फैमिली इज अवेलेबल, बट आई एम ऑल्सो गिविंग स्पेस। बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं लगना, बहुत ज्यादा बार बार पूछना तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, इट्स नॉट गोना वर्क। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना, दैट इम्पोर्टेंट टॉक, दैट टॉक हैज टू हैपन, दैट टॉक हैज टू हैपन एट दिस एज। सो आप खुद अपनी तैयारी करो। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस तरीके से अपने बच्चे की ग्रूमिंग करना चाह रहा है, और आपको नहीं पता कि मैं कैसे अपने बच्चे से बात करूं या कैसे प्रोसीड करूं, देन मे बी यू कैन टॉक टू मी सेपरेटली, और वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। इस केस का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कितना जरूरी है अपने बच्चों को, और यहाँ पे बॉय की बात है, बॉय गर्ल दोनों, मेंटली प्रिपेयर देम and be with them at this time while they are going through a period of growth, right? जब हम टीनेजर्स के साथ काम करते हैं, तो हम एक बटरफ्लाई के मेटाफॉर को लेके चलते हैं, ताकि टीनेजर्स को समझ आए कि एक जो ककून स्टेज होता है ना, जिसके अंदर होता है, कितने अरसे तक ककून, बाहर से इट लुक्स अगली, लेकिन ग्रोथ हो रही होती है। तो जो टीन एज का जो स्टेज है, स्पेशली 11 to 13, एक ककून स्टेज है। अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, बाहर से किसी को नजर नहीं आ रहा होता है। बाहर से कभी कभी आप, कुछ बच्चे हैं ना इस एज पे, पिंपल्स होने लगते हैं, फ्रैकल्स होने लगते हैं, बच्चों की जो, लड़कों की हेयर आने लगते हैं, इट्स जस्ट इट मेक्स इट अ लिटिल, चिल्ड्रन फील अगली, राइट? तो वो उनको एक्सप्लेन करना, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, एंड यू विल ग्रो एंड यू विल बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर और बटरफ्लाई, व्हाटएवर यू विल ब्लूम। बट सपोर्ट बड़ा जरूरी है इस एज पे, ठीक है? तो इनशाला आगे बढ़ेंगे, आपको गाइड करना ज्यादा जरूरी है। हाउ विल यू मैनेज चिल्ड्रन दिस एज? Anybody wants to do this case? Yeah, I'll read. Thank you, Thomas. I'm so embarrassed to go out anywhere with my toddler. Even if I take for him toys and good food items he likes, he always wants the ones the other kids are having. Then he would start screaming and crying and just throw himself on the floor. It's too frustrating. ये कौन सी एज की बात हो रही है टोटल? 2 to 4. वही वाली 2 to 4, and I'm saying आज के जमाने में sometimes as young as 18 months, right? We're seeing children very the variation of it. But हो क्या रहा है? आपने उसको पूछा हो कि बेटा आपको क्या लेके जाना है, आपने उसकी फेवरेट टॉयज डाल दी, उसका फेवरेट आई डोंट नो बिस्किट डाल दिया, कुकी डाल दिया, या आई डोंट नो क्यूकम्बर डाल दिया अगर आप खिला रही हो, and then they go there and then they see another kid eating something else and now they want that, right? अब यहाँ पे हमने जुमला शुरू किया था, आई एम सो एम्बैरेस्ड। क्यों? व्हाई विल यू फील एम्बैरेस्ड मम्मी? Because people judge, कि सर्विस सही नहीं की और I don't know, blah blah. अभी तक मैं उस स्टेज पे पहुंची नहीं हूँ, but what I have seen people say यस, कि देखो कैसी माँ है, तो बच्चे को दे नहीं रही है, whatever reason, but yeah, people do say this. बिल्कुल। So Like mothers in do feel Majlis, insecure and जी थैंक यू रिता, मैं मजलिस पे ही आ रही थी, बोलो बोलो। like in Majlis,
जैसे कि अगर कोई मदर बैठी हुई है अपनी जगह पे और उसका बच्चा सामने जाके किसी का बच्चे का चीजें ले रहा है, ठीक है, जी और मदर खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अभी लेगी अपने बच्चे को तो वो चिल्लाएगा या कुछ हम्म भी करेगा, हाँ तो वो सामने वाली जज कर लेती हैं कि देखा कैसी ढीठ माँ है, लेती नहीं है बच्चों को और इस बिल्कुल टाइप की। बिल्कुल ट्रू एंड Words, I it's know not so about many words, सिर्फ it's not about words, but एक looks भी ऐसे हो जाते हैं ना जजिंग वाले कि आप सही बहुत लाइक शर्मिंदा हो ऑब्वियसली जाते वो हैं। लोग बोलेंगे तो नहीं हमें, वो लोग तो जज लुक ही देंगे। So true, so true, so true. And I feel that, you know, so many moms have stopped going to Majlis. I know so many mothers जो कहती हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि इतना मुश्किल होता है। इवन मदर्स नहीं, समटाइम्स इवन वॉलंटियर्स जो वहाँ पे लोग होते हैं, वही जो आपकी वाली बात है कि दे आर इवन लुकिंग एट यू जजमेंट लेके, ना नहीं संभल रहा आपसे एक बच्चा नहीं, या वो कहते हैं कि मतलब मजलिस हो रही है, वो कहते हैं इसको चुप कराओ। अरे अगर कोई बच्चा रो रहा है तो मतलब कैसे मैं चुप कराऊं? इट विल टेक टाइम, राइट? You can't a child who is already disturbed. So yeah, I can understand that इतना frustrating होता है mothers के लिए। और जो साइकिल मैं आपको बताना चाह रही हूँ एंजाइटी की, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा, the problem is that mama, the child is a part of you, right? He's got your blood, your flesh. तो जब आप अंदर से embarrassed फील कर रहे हो या anxious फील कर रहे हो या upset फील कर रहे हो, your child can sense your anxiety. So then it becomes like a cycle of it, right? आप भी anxious हो, वो भी anxious, and then it just becomes more and more. और मैंने आपसे कहा ना कि the only way the child can express at that time is becoming more loud, right? More frustrated. जहां आप उसको बोलोगी ना नहीं रो, चुप हो जाओ, right? क्यों? अच्छा, आप क्यों चीख रही हैं? क्योंकि आपको कोई ऐसे घूर के देख रहा है, तो आपका जो माइंड है या ईगो है वो ऑलरेडी अलर्ट हो गया that I need to manage this situation, right? So you are in panic mode and you are asking and you're shouting at the child to be quiet. तो वो हम कहते हैं ना कि आप चीख के कह रही हैं कि चीखो मत। मतलब can you imagine that cycle? So it just makes it so difficult. So when we are going to cover behavior, हम थोड़ा सा जिद को थोड़ी सी डिटेल में कवर करेंगे कि how do you manage the scenario, right? Because again, for me it also pains me to know that अच्छा अब आपने जाना ही छोड़ दिया मजलिस में क्योंकि वहां पे बच्चों को बैठने नहीं दे रहे या तंग कर रहे हैं whatever. So when our children are going to learn, so that balance between how do you manage a child's normal temper tantrum at this age and manage the kind of environment where you are and manage your own personality. अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तब भी वो आपको जज करेंगे कि ये कैसी है, राइट? तो आपने अपने आप को भी मैनेज करना है, बच्चे को भी मैनेज करना है, बच्चे की ईगो को भी मैनेज करना है, एंड ऑब्वियसली जो वैल्यूज हम देना चाह रहे हैं वो भी ट्रांसफर करना है। तो होपफुली इंशाल्लाह once we reach there. My point today was again just to tell you that this is part of normal child development. Okay, this one is important. And anybody wants to try this? अगर किसी के बच्चे ने अभी लिखना शुरू किया है, स्टार्ट किया है। My 4-year-old is very good with oral activities, but her teacher says she has problems with written work and sometimes reverses few letters or writes in a very big font. ठीक है, सही है। इसमें दो बातें हैं, राइट? सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ओरली द चाइल्ड इज Good. everything is good, right? The child is learning, the child is orally responding to all the activities. इसका मतलब मेमोरी में, कॉम्प्रहेंशन में वहां पे मसला नहीं है। मसला कहाँ आ रहा है? Written. Written. Writing. And what is the problem? What's happening when it comes to written? Reversal alphabets, वो same written alphabet को जम्बल अच्छा लिख रिवर्सल देना। की कोई एग्जांपल देगा? व्हाट इज रिवर्सल? B को D, D को B, P को P, P को Q. The most common is B को D, B, or I don't know, 5 or S. Have you seen that? Yes, 5 and S, yes. something like that, right? But basically this is happening. अच्छा, what if there is a child doing something like that, आपका mind कहाँ जाना चाहिए? What should you do? Any thoughts? Any thoughts? 4 साल का बच्चा है। Dyslexia तो 4 साल के तो नहीं बोल सकते. Very young. Shabash, beautiful. He's too young. Yeah, she's too young for us to say कि भाई मुझे लगता है इसके अंदर कोई learning problem है। मसला ये है कि आज से 15-20 साल पहले there was no awareness of learning difficulty, या very very less aware, you know, the teachers and
अब क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है तो छोटी छोटी चीजों में हमें भेज देते हैं, कहते हैं देखें इसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टी आ रहा है, लेकिन लेबल कर देते हैं। हाँ इतनी जल्दी नहीं। हाँ अगर अगेन वो कट ऑफ याद है, कट ऑफ क्या था जो मैंने रेड स्क्रीन पे लगाया था, व्हाट इज द कट ऑफ एज? 5 years. 6 6 to ईयर 10. यानी ग्रेड 1। अगर ग्रेड 1 में पहुंच गया आपका बच्चा और अभी भी ये एरर्स कर रहा है, देन इट्स अलार्मिंग, राइट? बट बिफोर दैट it's something where the child is still learning, right? So the trick here is, for instance आपका बच्चा रिवर्स कर रहा है, right? अब आप देख रहे हो कि वो B और D में रिवर्स करता है, तो the trick here is that you do not do any corrections, but you take a piece of paper and take an A4 size paper. So take a big paper और उसमें बड़ा लिखना। आपने देखा है मॉन्टेसरी में एक एक पेज पे एक लेटर लिखा होता है। There's a reason for it, because what your brain is trying to do is take that letter and create an imprint or an impression. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लर्निंग करेंगे, स्पेशली अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, that कैसे impressions बनते हैं आपके ब्रेन पे। So this is the thing that you have to take. So you will take an A4 size paper and you will write, for instance, a big, right? अब आप इसको पूछोगे ये क्या लिखा है, right? और फिर आप पूछोगे ये क्या लिखा है। That's it. Orally सही है ना? I just want the child to point and tell me, right? Whether this is B or this is D. पहले एक लेटर लिखा, चेक किया, अगर उसने सही बता दिया वंडरफुल, फिर आप ड्रॉ करोगे D और आप बोलोगे ये कौन सा है। अगर आपके पास मूवेबल अल्फाबेट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, you can do the same thing, right? Whatever letters the child is reversing. So instance, like I said, 5 and S or F and T or whatever. करना क्या है? करना यह है कि हमें ये चेक करना है that do they have the right imprint in the brain or not, or is the imprint in the brain, यानी imprint क्या है? एक लेटर का एक इमेज ब्रेन में कैसे बना हुआ है, वहीं पे गड़बड़ है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वही ठीक नहीं हुई है, डिटेक्ट ही नहीं करी, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा बच्चा, या सिर्फ कंफ्यूजन है बिकॉज दे ऑनेस्टली दे डू लुक अलाइक। सो इफ द चाइल्ड इज टेलिंग मी हाँ ये भी है और उसने उल्टा लिखा है, राइट? तो फिर हम बोलेंगे फिर आपने ये क्या बनाया है, इज दिस बी और इज दिस बी, यानी अब आप उसके गलत वाले को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो। All we are trying to figure out if the child is able to identify his or her mistake. ओ ये तो मैंने गलत बनाया, बहुत से बच्चे कहते हैं ओ ये तो रॉन्ग हो गया, रब करके सही कर। If the child is able to correct their own errors, then we don't have to worry a lot. We just have to reinforce it, right? जो हम कहते हैं जो भी लेटर है या नंबर है उसको reinforce कर दो, इंशाल्लाह विद प्रैक्टिस हो जाएगा। जब आप reinforce करा रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, प्लीज इतने छोटे छोटे लिखाने की जरूरत नहीं, 100 टाइम्स बी लिख के आओ, ऐसे कोई नहीं सीखता, राइट? एक ही दफा बड़ा लिखो, लेकिन उसको फिंगर ट्रेसिंग जो हम सेंसरी एक्टिविटीज मॉन्टेसरी में कराते हैं उस तरीके से रीइंफोर्स कराते हो, या सैंड लेटर थ्रू कराओ, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो अपनी गलती भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो फिर यहां पर ये हो जाएगा कि हाँ मे बी वी आर सीइंग सम अर्ली साइंस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। इफ दैट्स द केस देन वेयर आर यू गोइंग टू गो? Remedial, किसका काम है लर्निंग remedial ना? लर्निंग Remedial therapy. डिफिकल्टी अगर कंसर्न है देन या इफ यू बिलीव दैट वो अच्छा देखो, अगर वो अपनी गलती भी आइडेंटिफाई नहीं करा ना तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि फिर भी सिर्फ वो मसला नहीं हो सकता, 100% आप मुझे कहेंगे फॉरगेटिंग भी है, कहीं ना कहीं जो है ना वो याद करके भूल भी जाते हैं, सारे बच्चों को रेड याद हो गया, इसको रेड नहीं, मतलब बहुत सारे इश्यूज आएंगे, सिर्फ एक इशू नहीं आ सकता। और अगर आप पहली क्लास को सही से सुन रहे थे तो मुझे यकीन है कि मोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन वी बैक ट्रैक द हिस्ट्री यू विल टेल मी दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ बर्थ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में, या बर्थ के बाद, या बहुत तेज बुखार, या कोई कोई ऐसा एपिसोड हुआ होगा, इसीलिए इतना अलार्मिंग लर्निंग डिफिकल्टी हमें नजर आ रहा है, राइट? दोनों हालतों में प्लीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने वही घबराना नहीं है और छुपाना नहीं है, sort it out. If there is a problem, please seek help. And with help, there will be a difference. There will definitely be a difference. लेकिन सिर्फ आप छुपा के रखोगे या इसको अवॉइड करोगे तो खुद ब खुद सॉल्व होने वाली चीजें नहीं है, right? So reinforce it or get it checked. The most important, आप पूछ रहे थे कुछ है बताओ?
Okay. All right. So we will move to the other one, which is this. हाँ, ये वाला भी बड़ा मजे का है और बहुत पेरेंट्स परेशान होते हैं. Any thoughts on this? This is my child. देखो, इसमें एज बहुत मैटर करती है. बच्चा कितने इयर्स का है? 7 इयर्स का है. 7. And he's playing a game. Maybe I don't know. आजकल बच्चे I don't know बोर्ड गेम्स खेलते हैं या नहीं. But let's assume कि वो कैरम खेल रहा है या लूडो खेल रहा है, कोई बोर्ड गेम खेल रहा है या इवन कोई टीम गेम खेल रहा है. Obviously this is लूज है, तो it has to be with other people. वो हम कहते हैं ना, वो जब उसको समझ आती है कि अब मैं हार जाऊंगा, तो वो कहते हैं मुझे नहीं खेलना, या वो बिल्कुल वो चीज छोड़. नाउ फॉर अ पेरेंट दैट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एज अ पेरेंट आपके माइंड में क्या आता है जब आप कहते हो कि मेरा बच्चा जो है ना बस हारना नहीं चाहता? व्हाट इज योर वरी? व्हाट आर यू थिंकिंग? आप, वो तो 7 साल का है ना, और वो जब हार रहा होता है तो आप ऐसे वो रिएक्ट करता है. आपकी क्या परेशानी है? फ्यूचर में मसला होगा ना, मार्क्स कम बिल्कुल. आएंगे तो फिगर करेगा। बिल्कुल. हाँ, देखिए, द कहीं कहीं ब्यूटी की इज कोई दैट आपका बच्चा 2 साल का होगा या 7 साल का होगा, आप माँ हो, आप पेरेंट हो, यू विल बी थिंकिंग ऑन बड़ा होके ये क्या करेगा, राइट? आप उस तरीके से सोच रहे हो, और बिल्कुल जायज आपकी सोच है. लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो जो 7 ईयर वाला पीरियड है, यानी 7 इयर्स तक वाला पीरियड है, उसमें जो है ना बच्चे अभी तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग जो है ना वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, या द कॉन्सेप्ट ऑफ वो जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात आ रही थी ना, वहीं से रिलेटेड है. दे आर स्टिल लर्निंग द टीम स्पिरिट. दे आर स्टिल लर्निंग टू प्ले एज अ टीम प्लेयर, जिसमें हाँ हम कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात, वो अभी तक डेवलप नहीं होती. लेकिन विद एज एंड सर्टेनली आफ्टर 10 डेवलप होना शुरू हो जाती है. बट स्टिल अगर आपको फील होता है कि हाँ अब तक मेरे बच्चे के अंदर नहीं आया, स्पेशली स्पेशली अगर ओनली चाइल्ड है, या स्पेशली अगर बहुत ज्यादा सिबलिंग के अंदर एज गैप है, लाइक फॉर इंस्टेंस राइट नाउ वी आर वर्किंग विद अ चाइल्ड हु इज अराउंड अराउंड 6 ईयर ओल्ड, लेकिन उसके जो 2 बड़े भाई बहन है ना वो दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं. तो इतना एज गैप है, तो लिटरली उसकी एक अलग ही पेरेंटिंग हो रही है. उसके अंदर हम ये चीजें देख रहे हैं, बिकॉज फॉर हिम ही इज लाइक एन ओनली चाइल्ड ओनली, क्योंकि वो दोनों तो निकल जाते हैं सुबह, हैं वो सिबलिंग, लेकिन वो लिटरली पेरेंटिंग रोल में आ गए हैं रादर देन सिबलिंग रोल में. तो उस वक्त आप थोड़ा सा देखते हो कि हाँ उस बच्चे के अंदर बहुत सी चीजें डेवलप नहीं हुई होती हैं, सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुए होते हैं. सो इफ यू हैव अ चाइल्ड who is around this age, around 6, 7, even 8, और आप देखते हो कि टीम गेम्स में, टीम स्पिरिट में वो इतना ज्यादा अभी तक हम कहते हैं स्ट्रांग नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, तो बहुत पैनिक नहीं करें. हाँ सिखाए जरूर कि ओके बेटा गेम होता है, कभी ये हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगा, देखो हम इमोशनल लिटरेसी पे थोड़ा काम करेंगे कि उसकी फीलिंग को रिफ्लेक्ट जरूर करो. आपको अच्छा नहीं लगता, आप कैसा फील करते हो, अच्छा आपको क्या करना चाहिए, right? What can you do to make yourself feel better? This is the magical statement whenever I'm working with kids. Rather than मैं उसको बताऊं ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो. आजकल के बच्चे को जो है ना बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में. तो when we talk to them, we say, all right, what would you like to do? What can you do to make yourself feel better? Right? This has helped other children. When we talk to them, और वो काउंसलिंग टिप्स में आपको शेयर करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच जब चेंज करते हैं तो वो बच्चा एक रिलीफ फील करता है कि हाँ मुझे भी कुछ समझ रहा है, रादर देन मुझे सिर्फ डांट रहे हैं कि ऐसा ही करो. थोड़ा उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे. बट अगेन आफ्टर 10 अगर फिर भी नहीं आया, 12, 13 में, तो फिर जरा डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल केस टू केस. अच्छा. I need to ask a question here. जी जी जी, तो बस ये एक कि इम्पोर्टेंट अगर कोई आई बच्चा वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस आल्सो. जी बोलो बोलो, सॉरी. sure. हाँ. अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और बहुत ज्यादा कंपटीशन में, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स का भी पार्ट बनना, ठीक पर है. ऑल ऑफ अ सडन started feeling shy and saying I don't want to participate, I don't want to do this. से How पहले is नोहा it? पढ़ना, मिलाद पढ़ना, How but is now has the teenager, हाँ, तो ये देखो 11 to जैसे 13. मैंने आपको बताया टीनेज में थोड़ा सा जो मैंने आज टिप्स दिए उसको सोचो, स्ट्रैटेजी Yeah. सोचो, एंड देन इफ यू हैव अ गुड बॉन्ड विद दैट चाइल्ड, you speak to them and you appreciate what they were, and you say that
Is there something that happened that upset you that आप नहीं करना चाह रहे, या अभी आपको थोड़ा स्पेस चाहिए बस? That's it, right? अच्छा, एक और बात याद रखना प्लीज, अगर आप में से किसी के पास टीनेजर है, प्लीज वो पढ़ लो, टीनेज ब्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट? उसकी वजह ये Okay. so much change happening in teenage that sometimes they're discovering themselves. आपने देखा, मैंने आज भी सेल्फ डिस्कवरी वाला कोर्स डाला. I love working with teens at this age because there is something that they find out about themselves also. It's a age of growth. Maybe he or she is discovering a new path. अगर, लेकिन तबस्सुम इसमें मैंने ट्रिक आपको बता दिया. अगर आप मुझे कन्विंस कर लो बाकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, अगर उसका खाना पीना सोना थोड़ा बहुत कहते हैं सोशलाइज करना, उसकी पढ़ाई, अगर वो सब इफेक्टेड नहीं है, देन वी विल गिव देम स्पेस. अगर वहां पर कुछ मसला आ रहा है तो फिर इट इज समथिंग दैट वी नीड टू चेक. ओके, that's the way we differentiate. Okay, we have a few minutes and thank this you. is an important case, so I want to spend some time on it. कोई पढ़ना चाहेगा इसको? May I? Yes, Duchess, please. My 2-year-old likes to touch himself when I give him a bath. I've tried to stop him, but he laughs and touches again. I searched online, it says that it is normal. Is this okay? Should I ignore? Okay, when we are saying touches himself, what do we mean? He touches his private parts, Yes, his or her. right? बिल्कुल. अब यहाँ पर ये चीज मेरे लिए इसलिए जरूरी था थोड़ा डिस्कस करना, क्योंकि अगर वाकई आप ऑनलाइन जाओगे और टच करोगे तो आपको जो लिटरेचर मिलेगा वो कहेगा ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको तो आप इनकरेज करें, बस बच्चे को ये सिखाएं कि हम प्राइवेटली करते हैं, राइट? क्योंकि इन द वेस्टर्न कल्चर masturbation is not a problem. In fact, to some extent they encourage it. मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरा फर्स्ट केस था यूके में, one of the issues of this particular boy was that he was not socializing, और वो बहुत बाहर नहीं निकल रहा, तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, या he was not basically expressing himself इमोशनली. तो वो कल्चर अलग है, हमारा कल्चर या हमारी वैल्यूज उससे मैच नहीं करते. तो कुछ चीजों में हमें थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए. तो there are two things that I want to explain. One is, देखो, जब हम 2-year-old या बल्कि इसको और छोटा कर दो, अगेन 15 months से लेके मे बी अगेन 24 months तक, उस ब्रैकेट को अगर एक्सपैंड करें, Yeah. around that age, it is absolutely normal for the child to discover his own body. वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि वो एज ही आपकी ईगो डेवलपमेंट का, आपकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट का है, राइट? यू डिस्कवरिंग यू. इट्स अ ब्यूटिफुल एज. यू डिस्कवरिंग यू. यो, दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई कैन डू. एक ये बात है. दूसरी बात यह है कि देखो, फॉर सम वट एवर रीजन, अगेन आई हैव नो आंसर्स और नॉट ऑल द आंसर्स, बट children, even at this age, when they touch themselves, they do feel pleasure. Yeah, they do feel, जिसको कभी बच्चे बोलते हैं कि मजा आता है, या कभी आपसे बोलते हैं टिकलिंग होती है, ऐसी कोई सेंसेशन, राइट? They will give you some feedback like that. And why it is there, I don't know, but I want you to understand this is why bad people out there. Have you thought कि क्यों बच्चों को कोई रेप करता होगा, या क्यों कोई बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करेगा? कुछ महीने के बेबी को, कोई कुछ इयर्स के बेबी, but the thing is that they do experience pleasure, and then the bad person also experiences pleasure. So there is something going on there. And coming back to what we are saying, कि जब ये बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, एज एन एडल्ट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, स्पेशली अगर यहाँ इस ग्रुप में टीचर्स हैं, तो आप देख रहे हो ये कंप्लेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. पहले कम थी, अब बढ़ गई है कि वी सी चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल एंड डूइंग इनअप्रोप्रिएट एक्ट्स where they are either touching themselves or they are asking other children to touch themselves, or sometimes you hear teachers say कि वो अपने आप को रब कर रहा होता है, टेबल के कोने से रब कर रहा होता है, anything. And over the years, I have met teachers who, when they are telling me about it, they are blushing and they're so uncomfortable and they're like, मैं आपको कैसे बताऊं? और मैंने कहा, मैंने सब सुन लिया, आप बताएं. Because I want them to understand that when children are doing something like that, please remember, उनको नहीं पता कि ये कोई sexual act है. हमें पता है, हम adult है ना, हमें मालूम है. उनको नहीं मालूम. They are doing it, but why they are doing it is concerning. तो जो दो बातें मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि देखो,
जब बच्चे शुरू में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने बॉडी, वो टच करेंगे, राइट? जिस तरह हमने कहा, वो आप मना करोगे वो और करेगा, वही वाला रूल जिस तरह जो भी बच्चों को हम मना करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप गोरों की फिलॉसफी फॉलो करोगे तो वो आपसे कह रहे हैं करने दो, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। हमारी फिलॉसफी के मुताबिक वी स्टॉप देम, राइट? वी इवन इफ यू नीड टू बी अ लिटिल strict, this is where you will teach them that no, you will not do it। और फिर बहुत सी, जैसे हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू करते हैं, या छोटे बच्चे हैं, they respond very well to storytelling, and you don't need to go into the biology or the reproductive organ, you can just focus on the germs or dirt or whatever आपके nails में चला जाता है, फिर आप वही खाते हो, फिर टमी में एक होगा, और इस तरह, इसलिए टच नहीं करते, right? And in 9 out of 10 times children respond to this and they ultimately stop। वो बच्चे स्टॉप नहीं करते जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव या अनएप्रोप्रिएट एक्सपोजर लिया है, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, right? So if you have a 2.5-year-old, 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old, and if you are telling me that the child is touching himself, touching other people, asking some other child to touch himself, then I know that कहीं ना कहीं कोई इनअप्रोप्रिएट इंसिडेंट हुआ होगा। अब बहुत एम्बैरेस होते हैं पेरेंट्स बताने में, टीचर्स बताने में, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बच्चे को नहीं पता कि ये कोई सेक्सुअली वो हमें रिएक्ट कर रहा है। हमको मालूम है उसने एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर दी जो एज से पहले थी, राइट? और वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स रिपीटेड, राइट? बट अब हमें उस एक्ट को भी स्टॉप करना है और उसकी रूट पे भी पहुंचना है कि क्या हुआ था। बहुत बुराइयां हमारे पास है, बहुत बुराइयां। मेरा पहला केस सेक्सुअल अब्यूज का एक क्या बोलूं, एक ग्रैंडफादर था, राइट? दूसरा केस एक फादर था, फिर भाई, फिर अम्मी, मतलब मैंने सब देख लिया इस केस में। तो हम कहते हैं ना, जैसे किसी पे यकीन नहीं करना, तो मैं किसी पे यकीन नहीं करती। देयर इज सो मच हैपनिंग, एंड वंस द चाइल्ड लीव्स द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द होम, then the child has exposure to everybody, right? तो इस चीज के लिए भी, जिस तरह मैंने आपसे टीनेजर के लिए बोला था ना कि मेंटली प्रिपेयर करो, इसीलिए आजकल इतने सारे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग गुड टच एंड बैड टच पे हो रहे हैं कि when do you start teaching your children? So the right age is again 2.5. When you start teaching the children about body parts, when you start teaching them about body awareness, then you also start teaching them about good touch and bad touch and start obviously हर एज पे हम बच्चों के लेवल पे रख के बात करते हैं, राइट? बट बहुत जरूरी है कि बात की जाए। और उसमें फिर लास्ट पॉइंट यही आता है कि इफ ऑब्वियसली somebody has done something or is doing something or trying to do something, then you tell, because if they don't tell and if they get into this cycle, then it becomes habitual and it's very difficult to break। this is one of the difficult things in psychology, because अगर आप इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा गंदा बना के और बहुत ज्यादा डर्टी बना के बच्चों के माइंड में शुरू से बिठा दो, तो आगे चल के उनकी मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? तो बहुत आपने सटल तरीके से और विद प्रोफेशनल हेल्प इसको लेके चलना है। सो लेकिन द लास्ट मैसेज इज डोंट लीव इट, डोंट लीव इट, सॉर्ट इट आउट। अगर कोई चीज आपको अपने बच्चों में नजर आ रही है, शर्माना घबराने वाली बात नहीं है। हो गया, एक्सपोजर हुआ है। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं ऑब्वियसली जहां पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है। मेरे पास एक सबसे डिफिकल्ट केस ये था कि एक भाई था 10 साल का, वो ही वॉज वॉचिंग थिंग्स ऑनलाइन, और आपको पता है आजकल यूट्यूब पे उल्टे सीधे वीडियोस आ जाते हैं। उसका एक्सपोजर किसी वीडियो पे गया, उसकी आदत लग गई थी बार बार इस तरह के प्रॉन वीडियोस देखने के, एंड देन वन संडे ही सेक्सुअली अब्यूज्ड हिज ओन सिस्टर, right? And the sister was like 5, और वो सर्दियों के दिन थे, and the little girl was literally wearing tights, और उतार के जब उसने खैर अपना हरकत जो भी थी उसने कर ली। अब ना मैं उस बच्चे को कुछ कह रही हूँ, ना मैं उस बच्ची को कुछ कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे घरों के बच्चे हैं ये सब, right? And we worked very hard with the mother to explain that it's not your fault। आप अपने कमरे में सो रही थी, संडे का दिन था, and that little girl went to wake up the mummy
कि मेरे डाइट्स को चेंज कराओ, जब उसको समझ आया कि कुछ क्या हो रहा है ये, एंड शी गॉट सो अलार्म्ड। बट मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो सुना रही हूँ। व्हाई? बिकॉज आई एम लाइक कि डोंट थिंक कि बुराई बाहर है, राइट? अब हमारे घरों के अंदर भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो दीज आर द केसेस वेयर आई फील वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, we need to be very observant, and we need to be very open to the fact that if it is happening in my surrounding, then nobody is to be blamed, but to sort this is more important, right? इसको वो करना सिर्फ चुप करके भूल के चुप, वो ऐसे ही हम कहते हैं ना, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, लेकिन वो जो स्ट्रगल कर रहा है उसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट रह जाता है, राइट? तो कहाँ से कहाँ बात चली गई, लेकिन आई होप कि जो एसेंस हम देना चाह रहे थे वो आपको समझ आएगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, अगेन आप इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हो। कुछ 5 मिनट ऊपर हो गए, बट अगर अभी कुछ पूछना है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लो। हाँ जी, मैं एक बात प्लीज पूछना चाहूंगी। ये सब इसी तरीके की जब हमारे पास केसेस होते हैं, या हम लोग बीइंग पेरेंट्स थोड़े से बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, तो लाइक बच्चे जब फैमिलीज में जाके अपने कजन्स के यहाँ स्लीप ओवर्स के लिए जाते हैं, फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली चीज़ें बहुत सेटल्ड होती हैं। हमारे यहाँ मेजोरिटी में अहले तशय्युह के यहाँ ये वाली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बीइंग प्रोटेक्टिव फ्रेंड्स के लिए स्लीप ओवर्स, वो तो आप एक बात कह सकते हैं कि बेटे ये हमारा नॉर्म ही नहीं है, हमारा ट्रेंड ही नहीं है कि कभी हम फ्रेंड्स के यहाँ आपको भेजें, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी भी नहीं हो सकता। वहाँ चीज सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन जब हम थोड़े से भी प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं टीन एजर्स में आके, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आप ऐसे क्यों सोचती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हम बड़े हो गए हैं। ट्रू, ये वाली चीज आ जाती है। ट्रू, ट्रू। और शायद इसीलिए अरीज मैं कह रही हूँ कि देखो, जो भी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग आपकी और आपके बच्चों की है ना, उसकी बेस पे जो काम करना है वो शुरू में है। अगर आपने बहुत अच्छा उनको ट्रेन किया है और बहुत क्लोज आप उनसे हो, तो फिर वो आपसे खुल के बात कर सकते हैं, दे कैन शेयर विद यू इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट। और याद रखो कि पेरेंटिंग टीनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए। हम कहते हैं ना वो भी बड़े हो गए तो आप भी थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आपकी वैल्यूज अलग होनी चाहिए, बट हाँ समटाइम्स, और हमारे रिलीजन में भी यही है ना कि उस उम्र पे जब याद आते हैं तो आप उनसे मशवरा लो, उनसे पूछो, टेक देयर ओपिनियन ऑल्सो, राइट? तो जब हम इंशाल्लाह बिहेवियर को थोड़ा डिस्कस करेंगे तो टीनेज के बिहेवियर पे आएगा कि हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू लिसन टू देम ऑल्सो। कि तो थोड़ी सी हम कहते हैं ना, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी उनकी, और फिर बीच में हम कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास एक 2 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है और आप दोनों को सेम टेक्निक से पेरेंटिंग कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा आपके घर में, राइट? It cannot be possible. You have to upgrade your parenting style for teenagers, and your values don't change. वैल्यूज को कैसे चेंज करोगे? वैल्यूज वही है, लेकिन स्टाइल ऑफ अप्रोच जो है वो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, द वे यू मैनेज अ टीनेजर एंड द वे यू मैनेज अ 2 year old. इनफैक्ट वैल्यूज बहुत हेल्प करती हैं। लाइक जो एक हमारे यहाँ हिजाब की एक चीज है, वो इस चीज को इस कदर लाइक सपोर्ट करती है कि वो ऑटोमेटिकली बच्चे को समझ आ रहा होता है हिजाब के हवाले से कि हमें बहुत ज्यादा लाइक फिजिकल नहीं होना, हाथ पैरों का मजाक नहीं करना, इस तरीके से एक डिस्टेंस रहना है। तो वो वाली वैल्यूज बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन बस थोड़ा सा वो जैसे लाइक बच्चे अगर कहीं हैंग आउट के लिए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम कहते हैं कि अगर जीन्स पहनी तो थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट पहनो, क्योंकि आपको फिर लेटर ऑन समटाइम्स एक्सप्लेन करना ही पड़ता है कि ऐसे सिक माइंडेड पीपल भी होते हैं सोसाइटी में, तो आपको खुद अपने आप को प्रिवेंट करना है। वहाँ समटाइम्स बच्चे थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है और नहीं होता है ऐसा। आप क्यों ओवरथिंक करती हैं? The trick for teenagers is, rather than tell them, bring them to a point where they say it themselves, right? तो इंस्टेड ऑफ कि आप ये नहीं पहनोगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता या हम ऐसे नहीं करते, हम उनको इस बोला, अच्छा आपको आप क्यों लग रहा है मामा मना करिए, आपको क्यों लग रहा है हम ऐसे बोल रहे हैं, आपके ख्याल में ऐसे क्या होगा? आप सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन जनरली, या आप समझ रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ? When you put it on them to start thinking on that point of view, sometimes they understand. Sometimes teenager के साथ parenting is a relationship and a compromise. Some days are good, some days are bad, some days are very bad.
राइट, लेकिन इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी बात हो, थोड़ा सा आपका अप्रोच अपग्रेड हो, एंड होपफुली यू विल गेट देयर इंशाल्लाह। ठीक है, so we're going to stop here for today, and if there are any questions in anybody's concerned personal level पे, तो वो आप इंशाल्लाह मैसेज पूछ लेना। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.